Hello everyone. Thank you to all for joining us again on third day of Keynotes Homeopathy Webinar Season 1. We welcome all homeopathic students, teachers and doctors. My name is Dr. Rohit Gupta, author of the book and the founder of Keynotes Homeopathy Enterprises. Keynotes Advanced and Complete Materia Medica is the most authentic and updated international edition of 122 years of Allen's Keynote with 15 new updates. It has 360 corrections of printing mistakes, completed 45 partially written symptoms, and added again 5 removed symptoms. All these messages are present in Allen's Keynote of all publications, which have been updated from 10 volume of hearing guiding symptoms. And hearing guiding symptoms is the source book of Allen's Keynote. Added 2 new remedies, including 170 new symptoms from the extended work of Dr. S.C. Allen, which were published after his death. But all these updates have never been included in Allen's Keynote. No adulteration, only authentic content, not rearranged, and no change in the original form, following only the real format of Dr. S.C. Allen. This is the first colorful Allen's Keynote Materia Medica, and it also has a lecture part and a chart of details of medicine for preparation of competitive exam, clinical indications and constitutional prescribing symptoms, and 50 rare medicine with one-line indication for homeopathic practice. So I tried my best to update first time this book of a great stalwart for a betterment of homeopathy. Now today's agenda: introduction of speaker, lecture, then questions and answers. In today's webinar, I welcome Sir to the platform and I am highly obliged to him for being with us today. He is a renowned homeopathic teacher, speaker from Lucknow, UP. Now I should introduce Professor Dr. Amit Naik, sir. He is a professor and head of Department of Materia Medica, National Homeopathic Medical College, Lucknow. Sir is going to take this webinar on the topic utility of observation to get the simillimum. I request everyone to please write their questions during the session in the chat window, so we will discuss them at the end of the session. Now I request to sir please share his screen and take this session ahead. Professor Dr. Amit Naik is over to you. Okay, am I visible, Dr. Rohit? Yes, sir. Am I visible and audible? Yes, sir. Okay. Thank you, Dr. Rohit, for inviting me as a speaker in this webinar. And I am really remembering the moment which I spent during pandemic. And you people know very well that I conducted more than 60 national and international webinar during COVID crisis. So really, I am back again in this platform, and I really congratulate to Dr. Rohit Gupta for doing such a beautiful and very creative book, and really everybody inspired. And once upon a time, he came in my college and discussed that, sir, I want to write a special book on Allen's Keynote, and I appreciated him to do really after conducting such type of work. I really appreciate that this was one of the best book which I have seen, and right now he he is also written second edition, and he included some important fact according to the observation, and he corrected more than, I think, 350 mistakes and many more work he did. So really congratulate, and I hope that you will get valuable information from his book about Allen's Keynote. And today my topic is very important because everybody wants to know about the utility of observation at simillimum. Dear friends, when we talk about the observation, this is not special because Dr. Hennemann clearly mentioned in his aphorism number 6, 96, 83, 84, 90, 92, 98, 216, and 278
about the observation. And Dr. Henneman sir has emphasized the importance of observation during case taking and prescription in organon of medicine, which I discussed earlier. And he briefly explained in aphorism number 90 that how the patient behaved during the visit. So whether he was morose, quarrelsome, hasty, lachrymose, anxious, despairing, or sad, or hopeful, calm. I just want to give a big example about this concern. Suppose a patient comes in your clinic and he start to say that, sir, I am very anxious about my problem, and no doctor can treat my problem. Someone told that you have to go to Dr. Naik sir. What I am very hopeless. So I always think that my disease is fatal. I am going to die. No doctor can treat my problem. No doctor can understand my problem. So you can easily find about the observation and huge discussion with the patient. So arsenicum album will be considered. So such type of observation. Sir, kindly share your screen. Hello. Sir, kindly share your screen. Screen share हो रही कि नहीं? Hello. सर अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. एक मिनट. सर नीचे बॉटम में ऑप्शन है शेयर स्क्रीन. अच्छा एक मिनट देखो. अच्छा. हेलो. हेलो क्लियर हुआ? जी सर स्क्रीन शेयर हो चुकी है. ओके ठीक, थैंक यू. आप इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए सर नीचे स्लाइड शेयर में. Okay. So, Doctor, I was talking about the utility of observation, which Dr. Henneman already mentioned in various aphorisms. So, I was talking about aphorism number 90. So, he explained that how the patient behaved during the visit, whether he was morose, quarrelsome, hasty, and lachrymose. I was talking about, and I was giving a huge example. Suppose a patient comes in your clinic and he was having a problem of fever, and patient is very inactive, and patient is very debilitated. You can never think about tarantula. So by the activity of the patient, you can find out right similarium, because arsenicum album will be considered because the patient of arsenic album is weak and debilitated. So by your observation, so you need to understand about the activity of the patient, about the intelligence of the patient, about the intellectuality of the patient, about the behavior of the patient. So a lot of things you need to remember. So one by one, I'll explain everything about this concern. So as a doctor, what kind of observation you needed? So there are a lot of points which you should understand about introverted and extroverted posture, facial expression, like if patient is anxious or fearful, timid, happy, and sad. Temperament is very important. You know that there are 4 types of temperament: melancholic, sanguine, and phlegmatic, and I'll discuss later. And intellectuality of the patient, activity, which I was talking earlier. If patient is slow, so we can think about medicine like alumina or carbon group of medicines, about arsenicum album. If the patient is fast, so we can think about the spider group of medicines. And behavior, if the patient is foolish, childish, idiotic, lot of medicines. If there is idiotic patient, so you can think about Baraita carb. If childish, so you can think about Hyoscyamus niger. Foolish, you can think about Baraita, and many more medicines.
mental symptom, I was talking about the introverted. So the quality of the introverted and extroverted are as follows. Introverted patients can have timid, secretive, indifferent, averse to being disturbed, and dull intellect. And extroverted, vivacious, wandering, jesting, childish, boaster, open-hearted, and erotic. So whenever we talk about the extroverted quality of the patients in repertory, we can directly find a lot of medicines like stramonium, hyoscyamus, belladonna, coffea, graphitis, hyoscyamus pulsatilla, lachesis, sulfur, lycopodium, calcarea, platina, sepia, thuja. What, my dear friend, you should understand about the extroverted and introverted quality. I have seen many times that the lycopodium patient is introverted as well as extroverted. I just want to say about that the key feature demonstrating Silesia patient, that the patient of Silesia is timid. So we have three good options for timidity like lycopodium, gelsemium, and Baraita carbo. All four medicines are you can say introverted or timid. What the important thing which you should remember that Silesia patient is very good listener. He is timid, but he is not cowardice. So instead of Silesia, all three medicines are cowardice. So timid is a special feature which you can see in all four medicines. What one medicine you will find very good listener, very you will find intellectuality. What rest of medicines you will find cowardiceness, or you can say that the patient is very timid और इस प्रकार के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे. And second important rubric is absorbed. So a lot of medicines like mesothelium, nux mosquito, sulfur can be considered. So it means that patient is physically present but mentally absent. कभी कभी हम बोलते हैं कि आप physically present हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं बाहर होता है. तो जब कभी भी ऐसे पेशेंट को आप ऑब्जर्व करते हैं, you should understand that and you should find important rubric that is absorbed. And avarice and greedy. So arsenicum album will be considered because arsenicum album patient, once he want to get appointment from your side, he will call you and ask you that how much I have to pay for your appointment. So this is also an observational symptom. So for this, arsenicum album will be considered. So along with arsenicum album, you have another options like Merxol, Pulsatilla, Silesia, Delcamara, Lycopodium, phosphoric acid, Sepia, Brynia, Calcarea, Lachesis, and Nux vomica. Boaster is another observational rubric. There are a lot of patients and a lot of uh, family members who always talk about that I have 100 acres land. So you know that a patient के पास 2 या 3 एकड़ है लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के बोला. In Hindi terminology, this is called डींग मार या डींगे हाँकने वाला. So you can, by the way of talking, by the way of observation, by the way of haughtiness, or you know that proud feeling patient, and suppose the patient is very egoistic. Egoistic is another rubric. What अगर patient अपनी बात को बड़ा चढ़ा के बोला, so definitely you can find out the rubric. Boaster. So lycopodium can be considered. Sulfur is also important. What sulfur? But the difference between sulfur, lycopodium, and lachesis is that sulfur patient is honest, lachesis is liar, and lycopodium, you know that cowardice. Contemptuous is another rubric. You know that you just watch the facial expression of two pictures which you can easily see on your screen. That contemptuous means हिंदी में अगर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज का तिरस्कार करना या फिर उसका मजाक उड़ाना. Suppose अगर if I am getting 90% in high school exam, or my neighbor is talking about my position that I am not happy about him, तो इस प्रकार की चीजें discussion होता है तो contemptuous is another important rubric. And confident is another important rubric. Or confident
पेशेंट कैसे होता है, ये आपको ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली समझना होता है. सो द कॉन्फिडेंट पेशेंट्स आर you know that good body language, eye contact, gesture and कहते हैं ना कि बहुत एक्टिव, हाईली एक्टिव होता है और कहते हैं कि तुरंत चीजों को रिसीव करता है और तुरंत उस पर इम्प्लीमेंट करता है. तो ये कॉन्फिडेंट पेशेंट. इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, you can your body language is very difficult and your body language is very lack and easy. Everybody can understand and get your personality that you have lot of problems in terms of confidence. Egotism. I am remembering the dialogue of Prakash Raj in film of Singham where he told that मेरे साथ कुछ भी करने का पर मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का. So egotism is a very important rubric and the medicine will be considered platina, calcarea, carb, lachesis, iodine, lycopodium, nux vomica, medurinum, sulfur, baritum album. And focus and elegant is another observational rubric. And so the question does arise in every mind that how I find such type of rubric in clinical practice. So by the way of dressing sense, this rubric is related to dressing sense. When you see the dressing sense of Ranveer Singh or Govinda, you can easily find the meaning of this rubric. So focus और elegant. हिंदी में अगर बात करें तो एक ऐसा रुब्रिक जो कि ड्रेसिंग सेंस के द्वारा इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. और ड्रेसिंग सेंस जब पेशेंट का वॉच करते हो, केयरफुली देखते हो, तो कहते हैं ना कि यूजलेस, जिसका कोई मतलब नहीं होता और उसको आपके बॉस भी टोक सकते हैं. और अगर मेडिकल प्रोफेशन में तो हर व्यक्ति इसको ऑब्जर्व कर सकता है और उसको टोक सकता है कि क्या किस प्रकार की ड्रेसिंग सेंस आप पहने हैं. लेकिन ये नेचर में होता है और नेचर को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है. तो फोकस एंड एलिगेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रुब्रिक. सो मेडिसिन, साइलिसिया, चाइना, प्लेटिना एंड वेरेट्रम एल्बम. Impatience is another observational rubric. I have seen in many time in my OPD that patient जब लाइन में होता है, मेरा ऑब्जर्वेशन वहां से स्टार्ट होता है. बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो डायरेक्टली आते हैं और बीच में बोलते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है और मेरा पर्चा लग रहा कि आपने अभी मुझे बुलाया नहीं और मेरा पर्चा आ चुका है. मतलब वो डायरेक्टली आप पे प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते हैं कि आपने मेरा नाम नहीं लिया है और मेरा पर्चा आ चुका है. इसका मतलब बहुत इम्पेशंस है पेशेंट और आपके ऊपर कभी भी प्रेशर डाल सकता है और चीजों को या समय को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस. कहते हैं ना कि अगर आप साइलेंट हैं लाइक साइलिसिया, तो इम्पेशंस. और जब हम बात करते हैं कि कूल मेडिसिन के बारे में, तो साइलिसिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन की वो बहुत पेशेंस वाला होता है, कूल एंड काम पर्सनालिटी का होता है. लेकिन इम्पेशंस के बारे में बात करें तो अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड लिलियम टिक विल बी कंसीडर्ड because you know that hurried, worried, uneasy and restless. तो ये कभी कभी रिपर्टरी में मिल जाता है, मटेरिया मेडिका में नहीं मिलता, मटेरिया में मिल जाता है और रिपर्टरी में नहीं मिलता है. लेकिन इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन इस सिम्टम्स के लिए है, इस रुब्रिक के लिए है, वो कैमोमिला, इग्नेशिया, एपिकॉक, नक्स वोमिगा, सीपियस, साइलिसिया, सल्फर, लैकेसिस, मिडोराइनम, अर्जेंटम नाइट्रिगम, ब्रायोनिया, कैलकेरिया, हिपर कालीकार्ब, लाइकोपोडियम, नेट्राम्यूल, रस्टॉक्स एंड स्ट्रामोनियम. Irritability is another important rubric, and ये कहते हैं कि बहुत सिंपल रुब्रिक है और बहुत सारे पेशेंट्स को देखने को मिलता है. और कभी कभी इसको मैं कॉमन सिम्टम्स या कॉमन रुब्रिक के रूप में देखता हूँ. और इसलिए भी देखता हूँ कि हर इंसान इरिटेट आज की लाइफ में होता है, लेकिन छोटी छोटी सी बात पे अगर इरिटेट होता है तो दिस इज and another concern. So lot of medicines will be considered like alumina, aconite, antimonium crudum, apis mellifica, arsenicum aurum, and belladonna bovista bryonia. Lot of medicines. Loquacious is another important observational rubric. जब लोकेसियसनेस के बारे में बात करते हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट के बिहेवियर किस प्रकार के हैं और पेशेंट की बात करने का
तरीका किस प्रकार का होता है। तो लोकेसियसनेस यू विल फाइंड इन लैकेसिस, स्ट्रामोनियम, हाइड्रोसाइमस, डल्कामारा। अब लैकेसिस की जब लोकेसियसनेस के बारे में बात करते हैं कि अब people want to or homeopath want to ask a difference between lachesis and hyoscyamus. So lachesis and hyoscyamus both are a great medicine for paranoid schizophrenia and loquaciousness and jealousy suspicious. दोनों मेडिसिन, lasciviousness भी दोनों में होती है, लेकिन important difference between both of medicine that lachesis is very intelligent. What hyoscyamus, you know that the patient of hyoscyamus is very idiot and very foolish. और एक important rubric hyoscyamus में और देखने को मिलता है कि antics play करता है, कभी जीभ निकालता है, कभी आपको चिढ़ाता है और कभी childish activity play करता है। तो on behalf of that comparison, you can find out exact medicine about this concern. Reverence for those around him or oblique veneration. This is also important. There are a lot of patients की ऐसे मरीज होते हैं जो दूसरे का सम्मान करते हैं और इसको इनको क्लिनिकली आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Suppose a patient comes in your clinic and he is giving his feedback that sir, I have been taking your medicine since 2019, still I have no relief. But he was saying that sir, okay, I know very well about homeopathy. Homeopathy is a therapeutic science which is based on law of similia, so I can wait more 1 year or 2 years. So you know that कि वो पेशेंट आपकी पैथी का और आपका रिस्पेक्ट कर रहा है और ये सोच रहा है कि विदाउट टेकिंग एनी रिलीफ फ्रॉम योर साइड फिर भी वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि आप पे साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं कि सर 3 दिन दवाई लेते हुए हो गया लेकिन मुझे आराम नहीं लगा है। तो ऐसे पेशेंट होते हैं, उसमें इम्पेशंस अभी मैंने बताया रूब्रिक लगता है और इसमें आपका वेनरेशन की आपकी पैथी का और आराम नहीं लगने के बाद भी आपका रिस्पेक्ट कर रहा है और घर पे भी अगर देखा जाए तो फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बिहेव करता है। तो वेनरेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट रूब्रिक। Religious is also important rubric. So medicine will be considered like Veratrum album, Arsenicum album, Hyoscyamus, Lachesis, Lilium tic, Lycopodium, Stramonium, as well as sulfur. Vanity is one of the important and finest rubric nowadays. आज के दौर में देखा है कि लोग सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं और अपने ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो वैनिटी जो कभी-कभी हमने न्यूज़पेपर में देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी घटनाएं आप देखते हैं कि भाई झरने पे 2 फीमेल सेल्फी लेते उनके पैर फिसल गए और वो गिर गई और उनकी डेथ हो गई। तो ये क्या था? ये वैनिटी था कि आप सेल्फ सेंटर्ड थे और आपने ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए आज की अगर एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो वैनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, क्योंकि हमने देखा आसपास शादी हो कभी-कभी तो मैंने ऐसे चीजों को भी देखा है कि एयरपोर्ट में जा रहे हैं तो आप सेल्फी ले रहे हैं। तो अगर सेल्फी लेने का बहुत कहते हैं ना कि नशा अगर हो गया है और हर जगह पे सेल्फी लेते हैं तो वैनिटी आप रूब्रिक उसको यूज कर सकते हैं। सो वैनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक। सो प्लेटिना, बेलाडोना, मर्कसोल एंड पल्सरक्ला विल बी कंसीडर्ड एंड विवेसियस इज अनदर इंपॉर्टेंट रूब्रिक। कहते हैं कि जिंदा दिली, कभी आपने आनंद पिक्चर देखा होगा, कहते हैं ना कि मरने भी वाला है लेकिन जिंदा दिल, कहते हैं कि जिंदगी जब तक जियो तो जिंदा दिली से जियो। तो विवेसियस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक और एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी को बिलोंग करता है। लॉट ऑफ मेडिसिन विल बी कंसीडर्ड including Coffea, Crocus, Lachesis, Valeriana officinalis, Carcinosin, Floric acid, Hyoscyamus, Ignacia, Platina, Phosphorus, Stramonium, as well as Veratrum album. And emotions are also play an important role for the selection of medicines. So what kind of observation you need to understand during interaction with your patient? So patient can be angry, or you will find sadness over the patient and grief, joy, fear, contentment। और एक important होता है कि डिस्पोंडेंट भी होता है। डिस्पोंडेंट मतलब नाखुश भी हो सकता है। तो ये भी इमोशंस से रिलेटेड होते हैं। तो इमोशनल रूब्रिक्स और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर पेशेंट आपके पास बैठता है
तो उसके गेस्चर्स, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, इमोशंस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो अगर पेशेंट गुस्से में है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये भैया पल्साटिला तो नहीं है। और आई हैव सीन मैनी टाइम कि पेशेंट से जब आप इंटरेक्शन करते हो, और बहुत बार पल्साटिला पेशेंट के साथ मैंने देखा है, समझा है कि जब मैं उससे कुछ पूछना चालू करता हूँ और वो हम लोगों ने जब कभी भी पल्साटिला के बारे में पढ़ा है तो बस ये देखा है कि बीपिंग डिस्पोजिशन। तो बीपिंग डिस्पोजिशन सबके साथ बीपिंग डिस्पोजिशन नहीं होती। अगर एक आप फैमिलियर डॉक्टर हैं, इंटरेक्शन आपका पेशेंट के साथ होता है, पेशेंट से जब आप पूछते हैं कि व्हाट हैपेंड, पेशेंट कहता सर आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आई एम वेरी सैड। भाई क्या बात हो गई, क्यों आप सैड हैं, क्यों डिसअपॉइंट? मेरी सास मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती है, ये मेरी प्रॉब्लम है। और जैसे ही आपने कहा, और अपनी बीमारी के बारे में पेशेंट ने नहीं बोला, पेशेंट ने केवल अपनी सास के बारे में बोला। और जब आपने कहना चालू किया, पेशेंट से आपने बोलना चालू किया कि भाई ये तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो पेशेंट रोना चालू कर देता है और उसको लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर इमोशनली अटैच हमारे साथ हो गया है। तो जब पेशेंट के साथ आप फैमिलियर होते हो तभी इस प्रकार के रूब्रिक्स आपको पेशेंट से आप फाइंड आउट कर सकते हो। मोरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बैड मोरल्स एंड गुड मोरल्स। तो कभी कभी देखते हैं कि डिसओबीडिएंट, अगर बच्चा कभी आपकी क्लिनिक पे मदर के साथ आता है और आप देखते हैं कि मदर मना कर रही है कि ये काम नहीं करो, फिर भी वो काम करता है, तो ये भी एक ऑब्जर्वेशनल रुब्रिक है, जहाँ पे आपने पेशेंट से और बच्चे से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन उसकी एक्टिविटी और उसकी कहते हैं कि एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली आपने मेडिसिन के बारे में सोचा कि भाई ये डिसओबीडिएंट अगर है तो मर्कसॉल के बारे में सोच सकते हैं, सिफिलिटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इंसुलेंस एक अनदर इंपॉर्टेंट रुब्रिक है जो कि बैड मोरल्स को बिलोंग करता है। इसका मतलब होता है बद हिंदी में देखिए समझते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पेशेंट से आप इंटरेक्शन आपका होगा तो अपनी प्रॉब्लम पेशेंट हमेशा एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताएगा, लेकिन आपको उसको रुब्रिक के रूप में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इंसुलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे इसका मतलब होता है कि बदतमीजी, कहते हैं कि जैसे हम किसी से बोल रहे हैं कि ये काम नहीं करना और अब उसके बावजूद भी वो काम कर रहा है, या फिर आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, अगर आप बड़े हैं, छोटा अगर बड़े का लिहाज नहीं कर रहा है, तो इंसुलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट रुब्रिक। ल्यूडनेस एंड लेसिबियसनेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन। दिस इज ऑल्सो बैड मोरल्स। सो लैकेसिस, हाइसम्स can be considered, which I was talking earlier, that there are two important medicines um, which are very important and which cover this rubric. Lasciviousness, amorous is also another one. Gambling is also a kind of bad moral. Criminal tendency is important, like abrotinum and many more medicine you will find. Cruelty is also important. Abrotinum, nux vomica can be considered. Inhuman, nux vomica, abrotinum, nitric acid can be considered. Antisocial, और यू कैन से एनार्किस्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रुब्रिक है, और जब आप इसको रिपर्टरी में फाइंड आउट करोगे तो उसमें आपको मेडिसिन मिलेगी मर्कसॉल। सो एंटी सोशल एंड डिसओबीडिएंट दोनों में मर्कसॉल आपको मिलेगी। एंड हार्ड हार्टेड एंड गुड मॉरल्स की बात करते हैं तो ओबीडिएंट इज इंपॉर्टेंट। गुड मॉरल्स, रिलीजियस अफेक्शंस, कंसाइंस, रिवरेंस, वेनरेशन एंड बेनिवोलेंस। Willpower is also divided into two parts, positive will and negative will. So positive will and negative will, इनको कैसे find out करोगे? अभी मैं आपको बता रहा था, I was talking earlier that कि patient अगर आपके पास आता है and he is saying that sir my disease is fatal, I am going to die, no doctor can understand my problem, no doctor can treat my problem, someone told me that you are one of the best homeopathic doctor, that's why I'm coming. So you can easily understand that patient does not believe on homeopathy, but someone told that this is a good doctor, on behalf of that he is coming. So that is negative will, because he is hopeless, he is pessimistic, going to despair. That's why he is talking about all these concern that my disease is fatal. But positive will is very important. So positive will, suppose Silesia patient is very positive, very very positive, वेरी करेजियस, लेकिन कहते हैं ना कि बोलता कम है लेकिन बहुत पॉजिटिव पेशेंट होता है,
तो ये आपको जब पेशेंट के साथ जब आप इंटरेक्शन आपका होता है, तो पेशेंट से जब आप बात करते हैं, तो पेशेंट के बात करने के तरीके से आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पेशेंट होपफुल है कि होपलेस है, अपनी बीमारी के प्रति कैसा है। और जब एंजाइटी पे जाते हैं, तो देखिए आपने देखा एंजाइटी अबाउट हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपको मेडिसिन निकल के आती है, आर्सेनिकम एल्बम, बहुत सारी मेडिसिन हैं उसमें, लेकिन आर्सेनिकम एल्बम इज वन ऑफ देम। Temperament is also the part of constitution. So I was talking earlier that there are four important type of temperament: melancholic, choleric. Both are emotionally unstable, or you can see neurotic. And phlegmatic and sanguine, both I think due to some technical issues, her screen has been freezed. Please wait for 5 minutes. Sir will be back soon. There are some technical issue. Please wait for some time. We are fixing it. Okay. Share screen. Share screen.
सही है सर। विल से ना, विल, अच्छा मोरल से, विल, विल से इसके बाद टेम्परामेंट से। ठीक ठीक, ओके। So there are four type of temperament which I was talking earlier. So temperament is also the part of constitution. So melancholic and choleric patients are emotionally unstable. So the qualities of melancholic temperament are as follows. The patient will be moody, anxious, rigid, sober, pessimistic, reserved, unsociable, and quiet. While choleric temperament patients are touchy, restless, aggressive, excitable, changeable, impulsive, optimistic, and active. And when we talk about the phlegmatic and sanguine, both are emotionally stable. So phlegmatic temperament patient can have passive, careful, thoughtful, peaceful, controlled, reliable, even tempered and calm. And sanguine temperament patients are sociable, outgoing, talkative, responsive, easygoing, carefree and leadership. तो ये चीजें भी ऑब्जर्वेशनल होती है. जैसे पेशेंट आपकी क्लिनिक पे आता है और आप देखते हैं कि मूड उसका अच्छा नहीं है, तो आप उन मेडिसिन के बारे में आप कभी भी सैंग्वाइन मेडिसिन या जो कहते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी या जो पेशेंट बिवेसियस या जेस्टिंग होते हैं उनके बारे में हम नहीं सोच सकते हैं. तो मूडी होता अगर पेशेंट या फिर कहते हैं कि क्वाइट है और कहते हैं कि बहुत डिप्रेस्ड होता है, तो मेलनकोलिक टेम्परामेंट को इसीलिए मैंने ब्लैक से डिनोट किया है क्योंकि ब्लैक इज अ साइन ऑफ डिप्रेशन. तो जितने भी डिप्रेसिव पेशेंट होते हैं, चाहे वो ऑरम मेटेलिकम हो, चाहे इग्निशिया हो, चाहे वो एंटीमोनियम क्रूडम हो, उसमें मेलनकोलिक टेम्परामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो पेशेंट टची होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, लाइक लाइकोपोडियम, वो कॉलरिक होते हैं. सेंग्वाइन में बेलाडोना मेडिसिन, लैकेसिस, सल्फर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फ्लैग्मेटिक जो कूल एंड काम होते हैं, लाइक फॉस्फोरस एज वेल एज साइलिसिया. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब क्वेश्चन आंसर सेशन आपका होता है तो आप पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो एब्रप्टली, अगर सडन इन एन अनएक्सपेक्टेड मैनर, अगर इफ यू आर आस्किंग टू योर पेशेंट दैट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और पेशेंट इतना क्विक रिप्लाई कर रहा है कि आप भी बहुत इजीली नहीं समझ पा रहे कि अनएक्सपेक्टेड मैनर में आप को रिप्लाई मिल रहा है, so definitely you can understand that what I mean. So a lot of medicines can be considered like hyoscyamus, nux vomica, tarantula and sulfur. देखिए hyoscyamus इसलिए unexpected manner में behave करता है क्योंकि इसका behavior foolish होता है, idiotic होता है. tarantula बहुत ज्यादा एक्टिव मेडिसिन होता है. स्पाइडर ग्रुप का जो जितनी भी मेडिसिन होती है वो बहुत रेस्टलेस होती हैं. तो जब रेस्टलेसनेस होती है तो वो तुरंत आप पे सडन आपका जो भी क्वेश्चन होता है तुरंत सेकंड भी नहीं लगाता आपको रिप्लाई करने में. सेकंड इंपॉर्टेंट, इनकोहेरेंटली पेशेंट आंसर्स which is impossible to understand, so seen in semi-conscious or delirious state, so phosphoric acid will be considered. And patient answers clearly what it has no connection with the question, so put to him. So a lot of medicines like hyoscyamus, nux mosquita, thuja as well as silicea, and patient answers in single word or very short like yes, no, etc. If you are asking to your patient what's your name, so केवल वो बोलेगा मेरा नाम, ये नहीं बोलेगा कि my name is Amit Nayak, अमित. सो जब केवल सिंगल वर्ड में अगर कोई बच्चा रिप्लाई करता है या कोई पेशेंट रिप्लाई करता है तो ये भी एक ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक होता है. और मेडिसिन के बारे में बात करूं तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स फॉर दैट, बेरेट्रम एंड फॉस्फोरिक एसिड. एंड reluctantly अगर पेशेंट इज अनविलिंग टू आंसर व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय हिज एक्सप्रेशन, so hyoscyamus, phosphoric acid, nux vomica and glulinum will be considered. And way of talking is also very important. A patient is angry, when oblique to answer, so nux vomica, arnica, phosphoric acid, bryonia, natriumur and pulsatilla will be considered.
अब एंग्री देखिए, जब जब भी एंगर के बारे में बात होती तो रुब्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए. There are two important rubrics, vindictive and revengeful. तो जब कभी भी नेचर में इरिटेशन होता है और उसको बोलते हैं हम विंडिक्टिव, और रिवेंज होता है अगर प्लानिंग के साथ और स्ट्रेटजी के साथ आप किसी से बदला ले रहे हैं, उसको बोलते हैं रिवेंजफुल. तो एक एग्जांपल मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि अगर ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जैसे आपके पास वो आ रहे हैं, उनका इंटेंशन लड़ने का नहीं है, लेकिन आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, वो लड़ना चालू कर दिया. डॉक्टर साहब आपने अपॉइंटमेंट दिया था, 5 मिनट में नंबर आ जाएगा, 15 मिनट हो गया और लड़ना चालू कर दिया. ये विंडिक्टिव नेचर है. घर पे अगर पेशेंट इंटरेक्शन हो रहा है, घर पे अगर दाल में नमक नहीं डला, उसने थाली फेंक दी, ये विंडिक्टिव है कि पेशेंट का इंटेंशन नहीं होता गुस्सा करने का, लेकिन सडन एक्सप्रेशन उसका, चूंकि एंग्री बहुत ज्यादा होता है, इस प्रकार का जो रुब्रिक फाइंड आउट होता है वो विंडिक्टिव होता है. और रिवेंजफुल में क्या होता है कि अगर हमारा कभी भी किसी से झगड़ा हो गया, हमने वेट एंड वॉच, हमने उसको देखा समझा और हमने स्ट्रेटजी बनाई, प्लानिंग बनाई उससे बदला लेने की, फिर हमने उसको बदला लिया, तो ये आपका रिवेंजफुल होता है. तो ये इंपॉर्टेंट रुब्रिक्स होते हैं. तो विंडिक्टिव जो नेचर होता है वो नक्स वोमिका का होता है, और रिवेंजफुल जो होता है वो नाइट्रिक एसिड होता है. तो इसलिए रुब्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी सी चीजों की अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रुब्रिक किस तरीके का है, कि ये इस बंदे ने क्या स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ काम किया, कि इसका इंटेंशन ऐसा नहीं था लेकिन अनएक्सपेक्टेड ये हो गया जो वो नहीं चाह रहा था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिक्टेटोरियल, डल्कामारा लैकेसिस, लाइकोपोडियम एंड सल्फर विल बी कंसीडर्ड. डिस्ट्रैक्टेड, लाइकोपोडियम. History, Lycopodium, Ars, Belladonna, Hyperlachesis, and repeat the question first. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. repeats the question first. Causticum, Midorinum, Zincum metallicum and sulfur. और जिंकम में अगर एलन्स की नोट, रोहित गुप्ता जी बैठे हैं, उन्होंने, मैंने इनकी बुक देखी है, बहुत अच्छा है. इसमें जिंकम मैट में चीज को लिखा गया एलन्स के द्वारा, इन्होंने मॉडिफाई किया है कि किस प्रकार से कहते हैं ना कि कभी कभी ऑटिज्म के केस में भी बच्चा रिपीटेड कन्वर्सेशन, वही चीजों को रिपीट करता है जो आप बोल रहे हैं. तो जिंकम मैट में स्पेल ऑफ कन्वर्सेशन होता है, तो वो चीजों को बार बार रिपीट करता है, जो आप कह रहे हैं वही चीज वो रिपीट करेगा. तो जिंकम मैट बहुत अच्छा मेडिसिन है. मिडोराइनम में भी लिखा है, लेकिन मिडोराइनम में ये होता है कि जो कंसंट्रेशन होता है और जो कन्वर्सेशन होता है, कहीं ना कहीं जो है लॉस कर जाता है और कन्वर्सेशन प्रॉपर नहीं होता है. लेकिन जिंकम में ज्यादातर एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें रिपीटेड कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा होता है. एंड एवर्जन टू आंसर में ग्लूनाइन, हाइड्रोसाइनस, नक्स वोमिका एंड फॉस्फोरिक एसिड. अब बात करते हैं बिहेवियर का. तो क्वेरल्सम इज इंपॉर्टेंट. ऑब्जर्वेशनल रुब्रिक, इग्नेशिया, हाइड्रोसाइनस, नक्स वोमिका, पेट्रोलियम, सल्फर एंड टेरिंटुला will be considered. And foolish behavior, anacardium, baryta carb, hyoscyamus, cicuta, sulfur and stramonium. तो बेराइटा कार्ब में सबको मालूम है कि पेशेंट बहुत इडियोटिक होता है और फुलिश होता है, कहीं ना कहीं जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड भी मेडिसिन होती है. लेकिन हाइयोसाइमस और बेराइटा कार्ब को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? अभी मैं बता रहा था कि हाइयोसाइमस में जो पेशेंट होता है वो एंटिक्स प्ले करता है. आपने देखा होगा बच्चों को, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कभी कभी चिकोटी काट के चले जाते हैं, कभी आपको जीभ दिखा के चले जाते हैं. तो ये इसको अगर रुब्रिक अगर आप सर्च करोगे रिपर्टरी में तो इसको बोलते हैं एंटिक्स प्ले. तो बेराइटा कार्ब का जो पेशेंट है वो फुलिश होता है, इडियोटिक होता है, क्योंकि इंटेलिजेंट होता है, इंटेलेक्चुअल नहीं होता है. कैंट ने बहुत अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है बेराइटा कार्ब के बारे में कि ये सबसे मिसअंडरस्टूड मेडिसिन है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की, जिसको सारे ऑथर ने गलत तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट किया है. तो बेराइटा कार्ब का पेशेंट इंटेलिजेंट होता है लेकिन इंटेलेक्चुअल नहीं होता है. इंटेलिजेंट ऐसे होता है कि अगर आपने पेशेंट को बता दिया कि आपको ये काम करना है, 2 बार 3 बार बता दिया और वो काम करना चालू करता है, इसका मतलब इंटेलिजेंट है. लेकिन उसके आगे का काम वो नहीं कर पाता, आपको फिर से दोबारा बताना पड़ता है, तो इंटेलेक्चुअल नहीं है. हाइयोसाइमस का पेशेंट एंटिक्स प्ले करता है, फुलिश एक्टिविटी प्ले करता है, और उनकी उस एक्टिविटी के द्वारा आप क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हो कि पेशेंट किस तरीके की एक्टिविटी फुलिश है. तो किस फुलिश में भी कई सब डिवीजन होते हैं. जैसे हमने देखा, आपने सुना होगा कि वैक्सीनेशन के कहते हैं ना कि बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन,
एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, एलन्स की नोट में दिया है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन के बारे में दिया है, उसमें साइलिसिया को भी दिया है, थूजा को भी दिया है, और बहुत सारी मेडिसिन, थूजा ऑक्सीकोडेंटिलिस एंटिमटाट भी दिया है। लेकिन बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन में कौन सी मेडिसिन का क्या रोल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे साइलिसिया है, तो साइलिसिया में वैक्सीनेशन के बाद पस फॉर्मेशन हो जाता है, थूजा में फीवर आने लगता है, एंटिमटाट में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स वैक्सीनेशन के बाद आने लगते हैं, क्रोटेलस में वैक्सीनेशन के बाद कहते हैं ना कि पिटिचियल हेमरेज टाइप का फॉर्म होता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप रुब्रिक्स को तो समझिए, लेकिन रुब्रिक्स की इंटेंसिटी को भी समझिए कि किस प्रकार का रुब्रिक है और किस प्रकार की एक्टिविटी या किस प्रकार का ऑब्जर्वेशन आपको क्लिनिक पे आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉज टॉकिंग अर्लियर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रुब्रिक है, चाइल्डिश बिहेवियर। तो वेराइटा कार भी चाइल्डिश बिहेवियर प्ले करता, पोडोफाइलम, नेट्रम, कार, फॉस्फोरिक एसिड, हेलिबोरस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैलकेरिया एंड स्ट्रामोनियम, इडियोटिक, कैलकेरिया, फॉस्फोरस, ट्यूबरकुलिनम। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। अगर हेयर है थिन स्मूथ है तो कौन सी मेडिसिन होगी, थिन रेज्ड है तो कौन सा मेडिसिन होगा। फास्टिडियस, इंटरप्रिटेशन में फास्टिडियस है, अगर पेशेंट से जब बात करते हैं तो खुद ही उसका अटेंडेंट बोल देता है कि सर, अगर मान लो कोई भी इंसान अगर चप्पल पहन के घर पे आ जाता है तो ये बहुत ज्यादा एंग्जियस हो जाती हैं और इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन पेशेंट के नेचर में ये चीजें होती हैं और पेशेंट उन चीजों को टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो अगर फास्टिडियस है तो आर्सेनिकम एल्बम के बारे में सोच सकते हो, और थिन है, अगर हेयर थिन है, रेज्ड है, तो मर्क सॉल और ओपियम के बारे में सोच सकते हैं। और अगर बेबी हेयर है तो ओफिडिया ग्रुप की मेडिसिन, जैसे आपका लैकेसिस है, आपका एलेप्स है और क्रोटेलस है, इन सब मेडिसिन के बारे में आप सोच सकते हो। थिन अर्ली बेल्डिंग है और पेशेंट टिमिड है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो बेराइटा कार्ब साइलिसिया के बारे में सोच सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं कि हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन अगर है पेशेंट का तो थूजा, डलका मारा, काली सल्फ है, नेट्रम सल्फ है, नाइट्रिक एसिड है। ऑक्सीजनाइड में आपका आर्स आयोड है, फेरम आयोड है, काली आयोड है। कार्बोनाइट्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन में आपका अर्जेंटम नाइट्रिकम है, क्यूप्रम, मेटेलिकम एंड सल्फर। पोस्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस प्रकार का पोस्चर पेशेंट को आप देखते हैं। जैसे आपने देखा वो लाइकोपोडियम के बारे में कि हाफ क्लोजिंग आईज में पेशेंट होता है, आपको लगेगा कि पेशेंट जाग रहा है लेकिन पेशेंट सोया होता है। तो rubrics related to posture, so general lying, half reclining posture in amelioration, so aconite, gelsemium, calmia, ledum, sanguinaria will be considered, and general sitting, leaning against something while amelioration, spizilia will be given. Back pain supporting back amelioration, carbobase will be recommended. Back supporting the back netramure will be recognized, and back position aggravation, lot of medicines like belladonna, calcarea, heparin, phosphorus as well as silicea. Stoop shoulders, phosphorus, sulfur, calcarea, lyco, silicea and tuberculinum. Facial expression is also important. Anxious, arsenicum, argentum nitricum, calcarea, sorinum. These are major medicines which cover this rubric. Sad, aconite, arsenic, aurum, ars iode, calcarea, carboanimelis, lot of medicines will be there. Fearful, aconite is very important, and arsenicum album, very fearful and very anxious. Timid, I was talking about Veryta carb, silicea, gelsemium, and lot of medicines. Pulsatilla is also a very important medicine which cover this rubric. So when I was talking about all four medicines, so there are four important medicine which cover rubric like timidity, but the intensity of rubric you should understand, which I was talking earlier, that key feature demonstrating silicea patient, that the patient is yielding. What yielding or timidity is not like gelsemium, Veryta carb and lycopodium, because all three are cowardice in nature.
Silencia is not cowardice. Silencia is a good listener instead of speaker. That's why हम हमेशा सोचते हैं कि जो साइलेंसिया का पेशेंट होता है वो बहुत डरपोक होता है. डरपोक नहीं होता है, लेकिन वो कम बात करता है, अपनी स्टेमिना को मेंटल स्टेमिना को स्टोर करता है. कभी कभी मनमोहन सिंह के लिए बड़ा ही लोग बोलते थे कि ये मनमोहन सिंह है. तो अगर जब मनमोहन सिंह की पर्सनालिटी को आप देखोगे तो टिपिकल साइलेंसिया पेशेंट है, जो कि बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन लोगों का परसेप्शन ऐसा हो गया था क्योंकि ही वाज नॉट अ गुड ऑरेटर और स्पीकर. तो जब आप अच्छे स्पीकर नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं थे. ही वाज फॉर्मर आरबीआई गवर्नर. तो आप समझ सकते हो कि इंटेलेक्चुअलिटी किस पैरामीटर पे थी. तो इन चीजों का भी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि टिमिड अगर है तो टिमिड आपकी बहुत सारी मेडिसिन में, लेकिन टिमिडिटी किस प्रकार की टिमिडिटी है. साइलेंसिया की टिमिडिटी होती है कि वो पेशेंट कम बात करने का होता है और अपनी चीजों को, अपनी मेंटल स्टेमिना को स्टोर करके रखता है. और जो तीनों मेडिसिन हैं, जैसे जेल्सिमियम का मैंने बताया, ये इसलिए बात नहीं कर पाता क्योंकि ये कॉन्फिडेंट नहीं होता. आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन फंक में बहुत अच्छा काम करती, इसीलिए क्योंकि ट्रेमलिंग होता पेशेंट, तो पब्लिक को फेस नहीं कर पाता. वेराइटा भी बहुत ज्यादा हेजिटेट होता, पब्लिक को फेस नहीं कर पाता है. और लाइकोपोडियम भी कहते हैं ना कि जब आप लाइकोपोडियम को एक्सप्लेन करते हैं तो कावर्डिस से पूरी मेडिसिन एक्सप्लेन होती है. वो कहते हैं कि शेर की खाल में गीदड़. पेशेंट कहता है कि यस आई एम ब्रेव, लेकिन एलन्स और बोरेक दोनों में शायद लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि पेशेंट अपने आप को ब्रेव साबित करता है लेकिन उसको लगता है कि बगल वाले कमरे में कोई लेट जाए. तो आप सोचो कि अंदर से पेशेंट डरा हुआ होता है लेकिन अपने आप को शो ऑफ करता है कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव है. हैप्पी, चीयरफुल. अगर फेशियल एक्सप्रेशन बहुत हैप्पी है तो आप कैनिबस इंडिका, कॉफिया, क्रोकस, हायोसाइमस, लैकेसिस, नेट्रम कार्प, पॉडोफाइलम, बेलाडोना, इन सब मेडिसिन के बारे में सोच सकते हो. मैंने बताया कि ज्यादातर मेडिसिन सेंग्वाइन टेम्परामेंट के पेशेंट को बिलोंग करती हैं. मोरोस इज अनदर इंपॉर्टेंट. So anacardium, antim crude, aurum belladonna calcarea will be considered. ड्रॉजी, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कार्बोबेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और एलन्स में बहुत अच्छी चीज लिखी है कार्बोबेज के बारे में कि कार्बोबेज एक ऐसी मेडिसिन है जो मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड होती है. तो इस प्रकार का डल डिजीज, ड्रॉजी, जेल्सिमियम. अगर पेशेंट आपके पास, मैं बता रहा था कि अगर पेशेंट को फीवर है और पेशेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है तो क्या आप आर्सेनिक और जेल्सिमियम को दे सकते हो? आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो आप, क्योंकि पेशेंट रेस्टलेस है. और जब भी फीवर की कंडीशन होती है, ज्यादातर 95% जो पेशेंट हैं वो वीक हो जाते हैं, ड्रॉजी फील करते हैं. लेकिन अगर ड्रॉजी फील नहीं कर रहा तो ये अनकॉमन पैक्युलर सिम्टम है, उसमें टेरेंटुला और रस्टॉक्स विल बी गिवन. और अगर पेशेंट ड्रॉजी फील कर रहा है, पेशेंट इनएक्टिव है, तो आप आर्सेनिकम एल्बम के बारे में भी सोच सकते हो, जेल्सिमियम के बारे में भी सोच सकते हो. तो ये एक्टिविटी का भी बहुत रोल होता है कि पेशेंट एक्टिव है कि इनएक्टिव है. तो पेशेंट को जब आप केयरफुली वॉच करते हो, उसकी एक्टिविटी को वॉच करते हो, आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे कि पेशेंट एक्टिव है कि इनएक्टिव है. होपफुल, अगर पेशेंट कहते हैं ना कि ऑप्टिमिस्टिक, अगर आशावादी है. अब देखिए यहाँ पे मैं 2-3 चीजों को बताना चाहता हूँ कि एक चीज होती है पेसिमिस्टिक और एक होती है डिस्पेयर और एक होती है होपफुल. पेसिमिस्ट होता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी एग्जाम को अटेम्प्ट करूंगा. तो ये नेगेटिव जरूर चीज कही गई कि मैं फेल हो जाऊंगा लेकिन मैं एग्जाम अटेम्प्ट करूंगा. तो एग्जाम अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं तो ये मेरी पॉजिटिविटी है. तो 75% नेगेटिव और 25% पॉजिटिव होता है. तो ये आपका पेसिमिस्टिक भी हो सकता है और होपलेस भी हो सकता है. लेकिन डिस्पेयर में क्या होता है कि डिस्पेयर में पेशेंट कह रहा कि नहीं, कि मैं पास हो ही नहीं सकता हूं, कोई मुझे पास कर ही नहीं सकता, इसलिए वो अटेम्प्ट भी नहीं करता है. तो अगर अटेम्प्ट भी आप नहीं कर रहे हो तो आप 100% नेगेटिव हो. इसलिए डिस्पेयर पेसिमिस्ट से भी बड़ा रुब्रिक होता है. तो इस चीजों को भी समझना चाहिए कि दोनों में मतलब एक ही है, लेकिन पेसिमिस्ट कह रहा है कि नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा लेकिन मैं एग्जाम अटेम्प्ट करूंगा. तो ये मेरी करेजियस है कि मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव भी है. लेकिन डिस्पेयर में 100% कह रहा, माय डिजीज इज बैड, आई एम गोइंग टू डाई, नो डॉक्टर कैन ट्रीट माय प्रॉब्लम, समवन टोल्ड मी दैट यू आर अ गुड डॉक्टर, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग. तो आप समझो कि डिस्पेयर किस प्रकार का. ऑरामेट एंड आर्सेनिकम एल्बम का पेशेंट
बहुत नेगेटिव होता है, डिस्पेयर होता है। और ऑरामेट में भी देखा होगा कि पेशेंट सोचता है कि आई एम एन अनवांटेड एलिमेंट इन द सोसाइटी, लाइफ इज कांस्टेंट बर्डन फॉर मी, तो आई डोंट वांट टू लिव। तो ये ऑरामेट के पेशेंट में देखने को मिलता है। और होपफुल अगर बात करें, बहुत आशावादी होता है। ट्यूबरकुलिनम बहुत ज्यादा आशावादी होता है, और इसीलिए देखा होगा कि ट्रेवलर डिजायर होता है, आशावादी होता है, तो इसलिए दुनियादारी में क्या चल रहा है उसको पता नहीं होता, वो तो अपना एंजॉय करना चाहता है। तो ट्रेवलर रेमेडी के नाम से बहुत पॉपुलर है ट्यूबरकुलिनम। और अगर होपफुल रुब्रिक लगाते हैं तो और भी मेडिसिन से, ओपियम है, मर्कसोल, स्टेफिसेग्रिया एंड कॉस्टिकम है। एक्सप्रेसिव में मीडोराइनम, पोडोफाइलम एंड सल्फर। हॉटी में लाइकोपोडियम, प्लेटिना, सल्फर, बेरेट्रम, कॉस्टिकम, ग्रेफाइटिस, हाइसामस, लैकेसिस। अब यहाँ पे मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि भाई लाइकोपोडियम, सल्फर और लैकेसिस में प्लेटिना में क्या अंतर होता है। मैंने कहा कि प्लेटिना जो फीमेल होती है वो सेल्फ सेंटर्ड फीमेल होती है, और उसमें इंपॉर्टेंट जो रुब्रिक, अगर इसमें सब रुब्रिक देखा जाए तो उसमें होता है अफेक्टेशन। अफेक्शनेट नहीं होती, अफेक्टेशन। अफेक्टेशन मतलब होता है कि आर्टिफिशियल बिहेवियर, अपने ड्रेसिंग सेंस के द्वारा दूसरों को अट्रैक्ट करना। तो प्लेटिना में इस प्रकार की चीज देखने को मिलेगी। लाइकोपोडियम में अगर देखा जाए तो लाइकोपोडियम चूंकि बोस्टर होता है, बोस्टिंग एक्टिविटी प्ले करता है, तो पेशेंट बहुत प्राउडी होता है, बहुत ईगोस्टिक होता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन होती है, घर पे ये बहुत ज्यादा ईगोस्टिक होता है, घर पे फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर मजदूरों के साथ या इंफीरियर्स के साथ बहुत रूड बिहेव करता है। लेकिन जब बॉस के साथ जाता है, चूंकि एम्बिशियस बहुत ज्यादा होता है और बॉस के पास जाता है तो हाथ जोड़ के खड़ा होता है। तो इसकी ड्यूल पर्सनालिटी होती है कि घर पे कुछ और बाहर कुछ और। सल्फर और लैकेसिस के बारे में बात करें तो दोनों हॉटी होते हैं, लेकिन सल्फर जो पेशेंट होता है वो ऑनेस्ट होता है, और लैकेसिस जो होता है वो लायर होता है। बाकी दोनों में आपको देखा, दोनों बहुत एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, लेकिन सल्फर ऑनेस्ट होता है, और जो लैकेसिस है वो बहुत लायर होता है, मिसट्रस्टफुल होता है, डिसीटफुल होता है, रिवेंजफुल होता है। एक्टिविटी में मैंने अभी बताया था कि स्लो लिथर्जिक अगर है तो बेराइटा का, ब्राइनिया, कैलकेरिया, एसिड ग्रुप की मेडिसिन भी इसमें सारी चली जाएगी। चाइना भी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। कुछ देखिए बहुत सारी मेडिसिन इसमें रिपर्टरी के अकॉर्डिंगली है, लेकिन अगर एज ए प्रोफेशन मुझसे बात कोई करे कि मटेरिया मेडिका के अकॉर्डिंगली आप कौन सी मेडिसिन को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो डेफिनेटली मैं एसिड ग्रुप की मेडिसिन, आर्सेनिक, एल्यूमिना, ग्रेफाइटिस, कार्बन ग्रुप की, ये सब मेडिसिन स्लो होती हैं और लेथार्जिक फील करते हैं। कैलकेरिया भी है। कैलकेरिया में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट ऑलवेज थिंक्स दैट आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर। मैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं पेशेंट। तो इंप्लीमेंट नहीं करते, इसलिए डिप्रेशन में जाते हैं और अर्थमेटिक कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाते हैं। हिस्ट्री में डल्कामारा, मीडोराइनम, मर्कसोल, नेट्राम्यूर, सीपिया, साइलिसिया, टेरेंटुला विल बी कंसीडर्ड। कॉम्प्लेक्शन, स्किन कॉम्प्लेक्शन से भी, ये भी बहुत ऑब्जर्वेशनल होते हैं। आपने देखा होगा कि नेट्राम्यूर और जब इसकी थूजा के बारे में बात करते हैं तो थूजा और नेट्राम्यूर में ग्रीसी फेस होता है, ऑयली एंड ग्रीसी। कैलकेरिया कार्ब में फेयर फैटी फ्लैबी होता है। अगर ग्रेफाइटिस के बारे में बात करें तो फैटी होगा, फ्लैबी होगा, फैटी होगा लेकिन डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा। काली बाइक्रोमिकम भी फैटी होता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। लैकेसिस के बारे में लोग गलत पढ़ते हैं कि लैकेसिस का पेशेंट बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव होता है, मेंटली एक्टिव होता है। उसमें एलेंस में लिखा है कि मेंटल लेबर बेस्ट परफॉर्म्ड एट नाइट। मेंटल जो भी लेबर होता है, मेंटल वर्क होता है, रात में परफॉर्म करता है, शॉर्टकट फॉर्मूले पे बिलीव करता है, लेकिन फिजिकली वर्क नहीं करता है। तो फिजिकली पेशेंट ओबेज होता है एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन का होता है। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि ऑब्जर्वेशनल है कि कैसा थूजा का पेशेंट अगर देखा जाए तो आप देखिए कि बिल्कुल पेट निकला हुआ होता है, और उसमें एसके दुबे ने बहुत अच्छा कंपैरिजन किया, लुकिंग लाइक गणेश जी। तो ये भी ऑब्जर्वेशनल सिम्टम्स होता है, रुब्रिक होता है। अब बात करते हैं जैसे इमेसिएशन की। अगर कोई पेशेंट इमेसिएटेड है, नेक और चेस्ट में इमेसिएशन होता है, तो उसमें आपका नेट्राम्यूर, सेनिकुला, बहुत सारी मेडिसिन उसके बारे में सोच सकते हैं। अगर जनरलाइज्ड इमेसिएशन है, पूरी बॉडी में कमजोर है और दिख रही है, तो आपको आयोडम भी ऑप्शंस, आपके पास आयोडम ऑप्शंस है, कैलकेरिया फॉस ऑप्शंस है, लॉट ऑफ ऑप्शंस विल बी देयर। लेकिन रैपिड एंड प्रोनाउंस्ड इमेसिएशन, आप कह रहे हैं 3 महीने पहले
एक पेशेंट को देख रहे हैं बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा है, और 2 महीने बाद आप देख रहे हैं कि एकदम से कमजोर हो गया है, तो बहुत अच्छी चीज लिखी है, रैपिड एंड प्रोनाउंस्ड इमिसिएशन ट्यूबरकुलिनम विल बी कंसीडर्ड। तो स्किन के कॉम्प्लेक्शन से और स्किन से और इमिसिएशन से भी आप पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस मेडिसिन का ये पेशेंट है। डार्क कॉम्प्लेक्शन में कॉस्टिकम, इग्नेशिया, कालिका, नाइट्रिक एसिड, प्लेटिना, रस्टॉक्स, ब्राइनिया, नक्स वोमिका। इसीलिए मैंने कहा था कि प्लेटिना को आप लोग बहुत सोचते हैं कि बहुत, प्लेटिना और पल्सटिला में ही अंतर होता है। पल्सटिला मेकअप नहीं करती, टिपिकल इंडियन विमेन के नाम से फेमस है, और प्लेटिना जो फीमेल होती है वो डार्क, एक्यूरेटली अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली डार्क कॉम्प्लेक्शन की होती है, लेकिन आर्टिफिशियल कहते हैं कि जो ड्रेसिंग सेंस है उसके द्वारा लोगों को अट्रैक्ट करती है, इस वजह से ये रूब्रिक इसमें इंपॉर्टेंट है। फेयर कॉम्प्लेक्शन में कैलकेरिया कार, फॉस्फोरस, पल्सटिला, स्पॉन्जिया, कैप्सिकम, ट्यूबरकुलिनम, हीपर, ब्रोमियम, लाइकोपोडियम, साइलिसिया, सल्फर, ट्यूबरकुलिनम। एंड टाइप्स ऑफ स्किन, ऑयली स्किन में अभी मैं बात कर रहा था, नेट्रम्यू, रस्टॉक, सोराइनम, ग्रेफाइटिस, थूजा। ड्राई स्किन में अगर बात करें तो आर्सेनिकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्किन डिजीज को देख रहे हैं तो अगर स्किन में आप सिम्टम पेशेंट नहीं भी बता रहा है तो स्किन की क्वालिटी को देख के और उसकी ड्राइनेस को देख के आप एल्यूमिना, आर्सेनिकम एल्बम, ग्रेफाइटिस, एंटिम क्रूड, लाइकोपोडियम, नक्स मॉस्केटा को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको अगर ऑब्जर्वेशनल सिम्टम का पता है कि किस प्रकार का ऑब्जर्वेशन, किस प्रकार की ड्राइनेस किस मेडिसिन में मिलती है, तो आप रूल्ड आउट कर सकते हो और मेडिसिन को। हाइट के बारे में भी अगर बात करें तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है। तो अगर पेशेंट टाल एंड शॉर्ट है तो फॉस्फोरस, टाल है तो फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, कॉफिया, मैकफॉस, शॉर्ट है तो बेराइटा कार्ब, अमोनियम कार्ब विल बी कंसीडर्ड। लुक वाइज अगर है तो फास्टिडियस है तो आर्सेनिकम एल्बम, काली सल्फ, नेट्रम सिलिकेटम, ऑरम म्यूनेट्रिटिकम, तो ये सारी मेडिसिन, कार्सिनोसिन, कॉस्टिकम, काली आर्स, ये सारे बहुत फास्टिडियस होते हैं, लेकिन आर्सेनिकम अगर देखा जाए तो बहुत फास्टिडियस है। डर्टी, अनटाइडी, इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें सल्फर, अमोनियम कार्ब, कैप्सिकम, ग्रेफाइटिस, हाइसाइमस, मर्कसॉल, प्लेटिना, सोराइनम, साइलिसिया एंड सल्फर विल बी कंसीडर्ड। तो आप देख रहे हैं कभी कभी सल्फर के बारे में जब बात होती है तो हमने केवल पढ़ लिया डर्टी, फिल्थी लुक। इसका मतलब ये नहीं कि कीचड़ लगा के आपके पास आ जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि सो के उठा, नहाया नहीं और सूट पहन लिया, तो आप देखोगे कि उसका अपीयरेंस जो होता है वो बहुत ही डिफरेंट अपीयरेंस है, और इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि सल्फर ये पेशेंट है या सोराइनम का पेशेंट या अमोनियम कार्ब का पेशेंट है। टंग की अपीयरेंस से, टंग के ऑब्जर्वेशन से भी आपको पता पड़ जाएगा। आपने देखा होगा क्लीन टंग है तो पीकॉक होता है, व्हाइट कोटेड टंग है तो ब्राइनिया होता है, पेस्टी टंग है तो एंटिम टार्ट होती है, थिक मिल्की व्हाइट कोटेड टंग है तो आपका एंटिम क्रूड होती है, ट्रायंगुलर रेड टिप टंग है तो रस्टॉक्स होती है। तो ये भी ऑब्जर्वेशनल सिम्टम्स होते हैं एंड रूब्रिक भी होती है, जिनको क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सिम्टम्स। A medicine for the various types of tongue, which I was talking earlier. तो broad tongue है तो कालीबाइक्रोमिकम, नेट्रम्यूर है, वॉडोफाइलम में। क्लीन टंग है तो आर्सेनिकम, एसेरम यूरोपियम, सिना, एपिकॉक, पायरोजिन, रस्टॉक्स। डर्टी टंग है अकुनाइट, एंटिम क्रूड। इरोजन ऑफ टंग है तो मर्कसॉल, सीपिया। मैंने कई बार बताया भी कि जो टंग में अगर ल्यूकोप्लेकिया है या इरेगुलर अल्सर होते हैं उनमें मर्कसॉल और काली साइनेटम, ये दो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। फ्लेवी टंग है तो कैम्फर, मर्कसॉल है। ऑब्जर्वेशन इन आईज में अगर ओपन लिड्स है, हाफ ओपन है तो बेलाडोना, क्यूप्रम, ओपियम, आर्स, कॉफिया, डिजिटलिस, जेल्सिमियम। आई प्यूपिल्स डायलेटेड है तो अर्जेंटम, नाइट्रिकम, बेलाडोना, कैलकेरिया, जेल्सिमियम, हाइसाइमस। आई में पैरालिसिस लिड्स में है तो कॉस्टिकम, जेल्सिमियम, सीपिया एंड स्पाइजिलिया। केस सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपका 10 मिनट और लूंगा, इसमें आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार से आप केस को लेना चाहिए। A case of seborrheic dermatitis, name Ritesh Gupta, dated 2/2/2022 and age 27 years, sex male, religious Hindu, occupation student, and he was having a problem of chronic eczema, seborrheic dermatitis. Itching leads to crusty eruptions which oozes occasionally,
more itching in evening between 5 to 9 p.m. Duration of eruptions about 12 years. So you can see that what kind of symptoms patient have, and most of the problems aggravate in evening and amelioration by cold application. When I asked past history, the patient told that I was under the treatment of allopathic treatment with antihistamine, which had relieved the complaints only for some times, and hypothyroidism and hypertension. And the family history: father hypertensive, mother osteoarthritis, and brothers sisters normal. Personal history में birth normal, delivery से हुआ था, growth and development normal, vaccination complete थे, habits tobacco chewing and tea का था, और physical generals में appetite normal, diet vegetarian, desire sweets, aversion sour food, thustless था patient. जब thermal के बारे में बात की है तो hot patient था, stool satisfactory था, excessive bloating, aggravate at night, urine have to strain during micturition, difficulty in micturition, sleep 7 hours का था, position lying on back, dreams, fearful activities normal, sensitivity to warm application, other discharges normal थे. तो व्हाट आई ऑब्जर्व, अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर का, फिजिशियन का काम फिर यहाँ से चालू होता है कि हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया पेशेंट का. और जब कभी भी लेते हैं आप लोग, तो जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में मैंने देखा है कि हम इंग्लिश में ही केस को डिस्कस करते हैं. क्या आप बताइए कि क्या कभी पेशेंट इंग्लिश में बोलता है कि सर आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ गैस्ट्राइटिस एंड अ फ्यू माउथफुल फिल अप टू द थ्रोट, कैनाइन हंगर, लॉट ऑफ प्रॉब्लम आई. पेशेंट कभी ऐसे बात नहीं करेगा. तो जब एज ए डॉक्टर अगर आपको या स्पीकर आपको केस को डिस्कस करना है, तो पेशेंट को हिंदी में ही आप जो आप आपने केस लिया है उसके हिंदी में बताइए, और कैसे आपने इंप्लीमेंट किया रूब्रिक्स को, उसको भी बताना पड़ेगा. तो ये मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने क्या पेशेंट में ऑब्जर्व किया. तो तेवर चेहरे पे थे, मतलब जब मैंने उसका देखा तो गुस्सा और तेवर उसके चेहरे पे मैंने फाइंड किया. जरूरत से ज्यादा अपनी डींगे हाँक रहा था. जब मैंने उससे बात किया तो बहुत अपनी डींगे बता रहा था, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, अरे वो क्या है, ये क्या है. तो मैं जब ऑब्जर्व किया मैंने, तो मैं समझ गया कि इस प्रकार की चीजें हैं. काम करवाने के लिए बॉस की चापलूसी करता है. जब बात किया उससे, बातों में उसने बताया कि सर इस प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन मैं अपना काम बना लेता हूँ, मैं अपनी चीजों को निकलवा लेता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना काम निकलवा लेता हूँ. और जब बात करता तो बहुत ज्यादा अभिमानी, हर बात में घमंड उसके झलक रहा था कि कुछ भी बात करने पे हर बात में वो कह रहा था नहीं मैं ये कर सकता हूँ, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है. कम समय में ज्यादा कमाना चाहता. ये जरूर था कि हर बात में पैसे की बात कर रहा था, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए क्या है, 4 व्हीलर तो मैं कभी भी ले लूं, मेरे पास तो टाइम नहीं है, आज तुम्हें मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन ये तो मैं कल का काम है, मैं कर लूंगा. तो ये जब डिस्कशन हुआ तो ये मैंने फाइंड आउट किया कि कम समय में ज्यादा कमाना चाहता है, कि पेशेंट की सोच बहुत ज्यादा है, लेकिन हो सकता है शॉर्टकट अपनाता, वो अलग कंसर्न है. लेकिन पेशेंट को जितना मैंने जाना, ये मैं उसमें एक्सप्लेन किया कि कम समय में ज्यादा कमाना चाहता है. और ढोंग बहुत ज्यादा लगा कि बहुत ज्यादा चीजों को प्रैक्टिकली नहीं बताता था, और चीजों को बहुत रियल नहीं थी उसकी बातें, लेकिन बिल्कुल लग रहा था कि पूरे बिल्कुल आडंबर किए हुआ था. जब नरेटेड बाय पेशेंट, जी ये मैंने पेशेंट को ऑब्जर्व किया बातों से, ये मरीज ने नहीं बताया, ये मैंने ऑब्जर्व किया. जब मैंने बात किया, 1 घंटे केस लिया, उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया. ये पॉइंट कभी कोई डॉक्टर नहीं लिखता, लिखना चाहिए कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, इसीलिए मैंने ये केस को प्रेजेंट किया. सेकंड, नरेटेड बाय पेशेंट. अब पेशेंट क्या कह रहा, गुस्सा करने के बाद चिंता, डॉक्टर साहब गुस्सा तो कर लेता हूँ लेकिन बाद में चिंतित हो जाता हूँ. पूजा करता हूँ. मैंने कहा पूजा करते हो? हाँ पूजा करता हूँ, क्योंकि पूजा का फल मीठा होता है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा था कि मुझे लगता है कि मैं बीमार हूँ. ये उसकी साइकोलॉजी थी, और वो बार बार रिपीट करता था कि डॉक्टर साहब बार बार मुझे पता नहीं क्यों लगता है, कभी भी मुझे लगता है कि मुझे कहीं ये नहीं हो जाए, कहीं ये नहीं हो जाए. तो ये पेशेंट की बात थी. फिर ये थर्ड जो सेक्शन है, जो आप डॉक्टर से, आप उनके अटेंडेंट से कभी नहीं पूछते, पूछना चाहिए. कभी कभी पेशेंट से आप पूछते कि आपको गुस्सा आता है. आप ये नॉनसेंस क्वेश्चन पेशेंट से कभी मत करिए. हर पेशेंट कहता है कि नहीं मैं कूल एंड काम हूँ, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता है. तो आप वो इसको हमेशा जो अटेंडेंट्स होते हैं उससे वेरीफाई करना पड़ेगा. अब पेशेंट से पूछते क्या आप फास्टिडियस हैं, 99% पेशेंट कहेंगे हाँ मैं फास्टिडियस हूँ. लेकिन जब अटेंडेंट से पूछते हैं तो वो बोलता नहीं सर झूठ बोल रहा है, वो तो बहुत गंदगी से रहता है.
तो ये थर्ड सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बना के रखते हैं। ये पेशेंट के अटेंडेंट्स ने कहा कि अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बना के रखते हैं, घर में हम लोगों की कदर नहीं करते हैं, हम लोगों से बहुत बुरा और भद्दा बोलते हैं, हम लोगों की बातों के बीच में बुरी तरह टोक देते हैं और कभी कुछ तो कभी कुछ कहते हैं। अब इन सब चीजों को जब ऑब्जर्व किया, पेशेंट की चीजों को लिया, तो किस प्रकार से हमने रूब्रिक्स में कन्वर्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फिर मैंने कहा, जैसे मैंने पहला ये बताया था कि तेवर चेहरे पर, तो मैंने लिखा तेवर चेहरे पे फ्राउन, स्ट्रेट हेयर टिमिड, ये जो मैंने फाइंड आउट किया टिमिड, जरूरत से ज्यादा अपनी डींगे हाँक रहा था, ये जो रूब्रिक है, जरूरत से ज्यादा अपनी डींगे हाँक रहा था, बोस्टर, काम करवाने के लिए बॉस की चापलूसी करता है, फ्लैटरिंग, अभिमानी बहुत ज्यादा था, जो मैंने अभी बताया था, हॉटी, कम समय में ज्यादा कमाना चाहता है, एम्बिशियस, और जो ढोंग कर रहा था वो अफेक्टेशन। अब नरेटेड बाय पेशेंट, गुस्सा करने के बाद चिंता, एंजाइटी, एंगर आफ्टर, पूजा करता हूं क्योंकि पूजा का फल मीठा होता है, ऑप्टिमिस्टिक, एंटीसिपेटरी एंजाइटी भी देखने को मिली है, और ये मैंने उसमें नहीं नोटिस किया, लेकिन कई बार उसने बोला कि सर ट्रेन छूट जाती है तो मैं 1 घंटे पहले पहुंच जाता हूं, तो एंटीसिपेटरी एंजाइटी इसमें थी, और एन इंटेंस डिजायर फॉर लव स्पेशली सेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एमोरस, मुझे लगता है कि मैं बीमार हूं, डिलीजन सिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, और कभी कभी देखा होगा जो प्रेडिक्टिव होम्योपैथ वाले जो डॉक्टर हैं, जो प्रैक्टिशनर है, वो डिलीजन पे मेडिसिन सिलेक्ट कर लेते हैं, उनका फेवरेट ये डिलीजन के रूब्रिक्स है। तो मुझे लगता है कि मैं बीमार हूं, तो डिलीजन सिक। अब नरेटेड बाय अटेंडेंट्स, किस प्रकार से अटेंडेंट्स ने नरेट किए, अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बना के रखता है, तो पेशेंट सोशेबिलिटी बहुत ज्यादा है पेशेंट में, घर में हम लोगों की कदर नहीं करता है, हीडलेस, इसमें केयरलेस रूब्रिक आता है, लेकिन जब आप क्रॉस रेफरेंस में हीडलेस दिया, रिपर्टरी उठाओगे आप हीडलेस मिलेगा। हम लोगों से बहुत बुरा और बहुत भद्दा बोलते हैं, एब्यूजिव, हम लोगों की बातों के बीच में बुरी तरह टोक देते हैं, डिस्पोजिशन टू कंट्राडिक्ट, कभी कुछ तो कभी कुछ कहते हैं, कैप्रिसियसनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट अपनी बातों से पलट जाता है, सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है, इंपॉर्टेंट रूब्रिक कैप्रिसियस। जब सारे रूब्रिक को कलेक्ट किया, तो उसमें जो मेडिसिन निकल के आई, फर्स्ट लाइकोपोडियम, देन पल्सैटिला, नक्स वोमिगा। लाइकोपोडियम पेशेंट को दिया, ग्रुप इंडिकेटेड मेडिसिन लाइकोपोडियम, सल्फर, नक्स वोमिगा, पल्सैटिला, कॉस्टिकम, प्लेटिना, स्टेफी सेग्री एज वेल एज साइलिसिया। प्रिस्क्रिप्शन लाइकोपोडियम दिया, 203 डोजेस, प्लेसिबो 30 TDS। फर्स्ट फॉलोअप 4-3 सिग्निफिकेंट रिलीफ इन ईचिंग, प्लेसिबो फिर प्रिस्क्राइब किया, 2-4-22 को एक्जिमा वाज कंप्लीटली क्योर्ड, प्लेसिबो प्रिस्क्राइब किया। ये केस था, ये जब पहले आपको पिक्चर बता रहा हूं कि फ्रेश केस 2-2-2022, तो ये जो आया था, ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस का केस था, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन ये थी। फिर बाद में जब 4-3-2022 को दिया, तो फिर इसकी कंडीशन ये हुई, और फाइनली थर्ड विजिट में इस प्रकार का क्योर देखने को मिला। और आज भी, और इसको क्योर मैंने जब तक नहीं बोला, ये तो आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, ये 1 साल से इसके बाद भी ट्रीटमेंट करा रहा था, और क्योर सीबोरिक डर्मेटाइटिस में हम जब कहते हैं, जब तीनों मौसम निकल जाते हैं और पेशेंट को कभी भी फिर से रिकरेंसी नहीं होती है, तो अब हम कह सकते हैं कि पेशेंट क्योर की तरफ बढ़ गया और क्योर हो चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग my view very carefully, and I hope that you got valuable information from my side. If you can have any query or question on your mind, you can ask. Thank you so much, sir, for lighting precisely on this topic and teaching all of us. Sir, shall we start the question and answer session? Yes, एक मिनट जरा। Okay. Yes, you can ask. So Dr. Neelam is asking a question. Sir, what if generals does not match as arsenicum album? Can we still give arsenicum album like thirst and thermal?
etc. नहीं, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आपको सारी पैरामीटर्स को लेना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको थर्स्ट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि देखो ये होता है ना कि सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन के कई व्यू होते हैं। जैसे डॉक्टर एनीमैन ने बोला कि आप किस पैरामीटर पे जाते हैं, अनकॉमन पेक्युलर सिम्टम को उठाते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को उठाते हैं। तो आप अगर, मैंने ये नहीं कहा कि आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली मेडिसिन को नहीं देना है, लेकिन मैंने ये कहा है कि अगर आप ऑब्जर्वेशनल सिम्टम्स को नोटिफाई करेंगे तो आपको रूल आउट करने में इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जितनी मेडिसिन, अगर आप पेशेंट फीवर का आपके पास आ रहा है और आपको पता है कि पेशेंट बहुत ड्राउजी है और बहुत कहते हैं कि लेथार्जिक है, तो एक्टिव मेडिसिन जितनी भी है, रस्टॉक्स है, स्पाइडर है, ओफिडिया है, सब रूल आउट कर दोगे आप। तो ऐसा नहीं कि आपको उसके ब्याह पे मेडिसिन देना है, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन मिल जाता है जिस दिशा में आप आगे बढ़ जाओगे। तो आपको थर्स्ट भी लेना है, ठीक है, आपको एपिटाइट भी लेना है और आपको नेचर भी लेना, बिहेवियर भी लेना है। लेकिन कभी कभी आप मेंटल जनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर एनीमैन सर ने भी कई चीजों के बारे में नोटिफाई किया है कि अगर मैं जिस दिशा में अगर एक बार चला गया और उस दिशा में अगर बढ़ गया आगे और वो चीजें बार बार प्रेसिपिटेट कर रही, तो फिर वो मेडिसिन दे देनी चाहिए। तो अगर एज ए क्लिनिकल ऑब्जर्वर आप लोग अगर थ्योरेटिकल जानना चाह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन कोई भी क्लिनिकल ऑब्जर्वर जो 50 और 100 पेशेंट देखता है, डॉक्टर रोहित गुप्ता भी कोलकाता में रहे हैं, उनको पता है कि लोग तो एलन्स की नोट के अकॉर्डिंगली बड़े बड़े केस डिस्क्राइब कर देते थे। तो एक सिम्टम को कौन सी चीज आपने उठा ली, जैसे क्लीमेटस इरेक्टा में एक पॉइंट दिया है कि स्ट्रक्चर यूरेथ्रा में बहुत अच्छा मेडिसिन है, तो मैं कई बार यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में क्लिनिकली मेडिसिन दे देता हूँ। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूट, इसलिए मैंने कहा कि आप किस प्रकार के प्रैक्टिशनर है, इसीलिए मैंने कहा कि आपको दोनों प्रकार के प्रैक्टिशनर बनना चाहिए। क्लिनिकल प्रैक्टिशनर भी आपको होना चाहिए और आपको जो प्रैक्टिशनर होगा क्लासिकल पे भी काम करना चाहिए। एक एग्जाम्पल और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप कभी कभी आप ये केस फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी पेशेंट को स्टोन है, रीनल स्टोन का केस होता है, तो पहले बार में जब कभी भी रीनल स्टोन का केस आता है तो एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंगली राइट और लेफ्ट में आप दे देते हैं मेडिसिन। तो ये आपका क्लिनिकल एनाटॉमिकल और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन पे सिम्टम्स पे आपने दवाई दे दी। लेकिन अगर रिकरेंसी हो रही है, अगर पेशेंट को रीनल स्टोन की रिकरेंसी हो रही है, साइकोसिस हो रहा है, साथ में ओवेरियन सिस्ट है, फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की जरूरत होती है। तो आप मियाज्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, कई लोग फिर यहाँ पे मियाज में चले जाते हैं, थूजा और मिडोराइनम भी दे देते हैं, और बहुत सारे लोग पूरा टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के। तो ये होम्योपैथी का यही कहते हैं कि होम्योपैथी इज एन आर्ट एंड साइंस। तो साइंस तो हमने पढ़ लिया, आर्ट यही है कि आप पेशेंट को किस तरीके से डील कर रहे हैं। जी सर, एक क्वेश्चन और है, डिफरेंस बिटवीन डिसओबीडिएंट एंड इंसोलेंस। यस, देखिए डिसओबीडिएंट का मतलब होता है कि आप कहते हैं ना कि आज्ञा का पालन नहीं करना। जैसे रेड लाइट को तोड़ के चले जाना, लेकिन बदतमीजी करना एक अलग चीज है। दोनों का हिंदी में समझिए तो दोनों में बहुत अंतर है। डिसओबीडिएंट मतलब होता है कि आपका आज्ञा का पालन नहीं करना है, और इंसोलेंस का मतलब होता है बदतमीजी करना है। तो अगर दोनों को आप डिफरेंशिएट करें तो इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिसओबीडिएंट वो लोग होते हैं कि जो किसी की बात को नहीं मानते हैं, ठीक है। उसमें इसीलिए एनार्किस्ट जब आप रूब्रिक डालोगे तो आपका मर्कसॉल मेडिसिन आती है, तो डिसओबीडिएंट होता है। नाइट्रिक एसिड भी डिसओबीडिएंट होता है। कहते हैं ना कि हाँ मैं अराजक हूँ, हाँ मैं बागी हूँ तो बागी में अलग रूब्रिक आता है, रिवोल्ट लगता है हालांकि, लेकिन एनार्किस्ट होता है या फिर एंटी सोशल होता है या डिसओबीडिएंट। तो डिसओबीडिएंट जो पहले डिसओबीडिएंट होगा वही आगे जाके एंटी सोशल एलिमेंट हो जाएगा, वही एनार्किस्ट हो जाएगा। तो ये अलग पैरामीटर है। मैंने एग्जांपल अभी दे दिया, जैसे मान लो रेड लाइट है, रेड लाइट को तोड़ रहे, रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ रहे। तो रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ना, अपने घर के जो नियम है, अगर फादर कुछ रूल्स बनाते हैं उसको फॉलो नहीं करना, वो डिसओबीडिएंट है कि आप अपने फादर के जो डिसिप्लिन है जो उन्होंने बनाए हैं उनको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। और बदतमीजी करना, बदतमीजी तो आपके नेचर में हो जाती है। उसका ओबेडिएंट हो सकता है एक बहुत अच्छा इंसान जो बहुत अच्छा घर पे बहुत अच्छा कहते हैं कि ओबेडिएंट हो लेकिन बदतमीज ना हो, ये भी नहीं होता है।
तो दोनों का अलग अलग पैरामीटर होता है सोचने का। तो इंसुलेंस में अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन होती है वो होती है लैकेसिस, और लैकेसिस के जब इंसुलेंस को डिवाइड करते हैं तो दो सब रूब्रिक फॉर्म होते हैं। एक रूब्रिक होता है सार्किस्टिक और दूसरा होता है मॉकिंग। तो मॉकिंग भी होता बेइज्जती करना और बदतमीजी करना, थोड़ा सा क्रॉस रेफरेंस में रख सकते हो। तो लैकेसिस में यही चीज होती है कि कहते हैं ना कि जैसे पेशेंट है और वो सार्किस्टिक अप्रोच के साथ कह रहा है कि अरे भैया मुझको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपने बोला कुछ नहीं है लेकिन आपने कह दिया कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर नेट्रम्यूर दूसरा अगर बंदा नेट्रम्यूर है तो वो तुरंत इरिटेट हो जाएगा। और मॉकिंग भी यही होता है कि बेइज्जत कर रहे हैं आप। तो मॉकिंग अगर देखा जाए तो मॉकिंग और जो इंसोलेंस है ये थोड़ा सेम है, लेकिन डिसओबीडिएंट और इंसोलेंस में तो बहुत अंतर होता है। दोनों का मैंने मेडिसिन बता दिया। जो इंसोलेंस होता है वो लैकेसिस है और डिसओबीडिएंट जो होता है वो मर्कसॉल है। Okay, sir. Sir, we have one more question, sir. What are the aphorism pertaining to observation apart from aphorism 90, as sir said in the beginning, if that can be told once more? Is related to sir observation. नहीं, 90 एफोरिज्म में अगर देखा जाए ब्रीफली, ऐसे तो बहुत सारी एफोरिज्म मैंने पहले बताया था। 6 एफोरिज्म में 6 में भी बताया गया। अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्व में तो साफ लिखा गया है कि अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्व में बताया गया कि आपको परसेप्शन पे कोई भी मेडिसिन का सिलेक्शन नहीं करना है। लेकिन ब्रीफली अगर बात करें कि जहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन सर ने नेचर, बिहेवियर, विल पावर के बारे में बात किया है, तो एफोरिज्म नंबर 90 में उन्होंने क्लियर बताया कि फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपको देखना है, साथ में आपको मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन को भी नोटिफाई करना है। पहले हम लोग क्या करते थे कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता था कि फिजिकल अपीयरेंस पेशेंट का क्या है, फेयर फैटी फ्लैबी है, ये क्या है। लेकिन आज की डेट में हमें मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन को भी ऑब्जर्व करना होता है कि पेशेंट का विल पावर कैसा है, पेशेंट किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, पेशेंट किस प्रकार से उसकी थॉट प्रोसेस कैसी है, कि पेशेंट एब्जॉर्ब तो नहीं है, पेशेंट कॉन्फिडेंट लो तो नहीं है। तो ये ऑब्जर्वेशन के बारे में अगर ब्रीफली डॉक्टर हैनीमैन सर ने एक्सप्लेन किया तो एफोरिज्म नंबर 90 में एक्सप्लेन किया है। बाकी मैंने पहले मेंशन किया था, बहुत सारी एफोरिज्म में थोड़ा थोड़ा जिक्र किया है ऑब्जर्वेशनल सिम्टम्स का और रूब्रिक्स के बारे में। आवाज नहीं आ रहा है आपका? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली। Sir, is it audible? Yes, Okay, please. sir, how to understand such rubrics as you said in Thuja, Cilicia, and Entimtat? Any book for this? कैसा बुक का रेफरेंस? हाँ सर, डिफरेंस इनमें समझने के लिए कोई बुक का रेफरेंस? हाँ ये क्या है कि यस, ये रेफरेंस नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। देखिए मैंने अगर मेरी प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो मैं 250 से 300 पेशेंट देखता हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, आपने मेडिसिन के बारे में यही तो बता रहे हैं, यही आपको कहते हैं कि हर चीज आपको बुक से नहीं देखनी है। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब ही होता है कि बुक से आपको आइडियाज लेने हैं। आइडियाज कैसे लेने हैं कि जैसे अगर आपको थूजा के बारे में पता होगा तो थूजा का ज्यादातर स्फीयर ऑफ एक्शन स्किन पे होता है। इस वजह से ऑन बिहाफ ऑफ दैट हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और जब पेशेंट को आप प्रिस्क्राइब करते हैं और पेशेंट को रिलीफ लग जाता है। मैंने 100 पेशेंट पे साइलिसिया को वैक्सीनेशन के बाद जो पस फॉर्मेशन होता है तो मैंने प्रिस्क्राइब किया, और प्रिस्क्राइब करने के बाद मुझे रिजल्ट्स मिले। इसीलिए मैंने कहा कि मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि जितनी भी मेडिसिन हैं उसको बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन में आपको देना चाहिए, लेकिन ये तो सारी बुक्स में लिखा है कि किन का एक्शन, किस मेडिसिन का एक्शन कहाँ पे है। एंटिमटाट का बताइए, आपको उसमें मिल जाएगा। एंटिमटाट जो मेडिसिन एक्ट करती है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे एक्ट करती है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे अगर एक्ट करती है तो बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन की वजह से जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, कफ, कोल्ड, कोराइजा होती है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंटिमटाट में ज्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं वैक्सीनेशन के वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे होते हैं। तो इस वजह से ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दैट। और आपने देखा होगा कोविड में भी ये सब चीजें रही एंटिमटाट के बारे में कि जब कोविड की प्रॉब्लम हुई थी तो
जो लास्ट स्टेज ऑफ निमोनिया की वजह से जो डेथ हो रही थी, हम उसमें एंटिमटाट प्रिस्क्राइब कर रहे थे। क्रोटेलस के आपको स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में मालूम है कि क्रोटेलस हॉरिडस डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड, आपने पढ़ा होगा हीमोलाइसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड, इसीलिए हीमोलाइटिक एनीमिया में भी काम करता है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड में भी काम करता है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड अगर होता है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड के जो परिणाम होते हैं वो क्या होता है, पिटिशियल हेमरेज होता है, तो और एकाइमोसिस भी हो सकता है। तो जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तो हम डिस्क्राइब करेंगे। तो ये तो हमारा खुद का नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम किस प्रकार की चीजों को समझें। यही है कि आपका खुद की कैपेसिटी कहाँ तक ले जाती है आपके माइंड को, और उन चीजों को कैसे आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। Sir, how to remember Allen's keynote? Please suggest some tips. देखिए एलन्स की नोट तो मैंने पहले भी बताया था कि एलन्स की नोट मुझे मेरा सबसे अच्छा बुक है, और मैंने कई बार बोल दिया लोगों से, मैंने बोला भी है कि अगर आप एलन्स की नोट अगर नहीं पढ़ा है तो आप कुछ नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि लोग सीधा सीधा जाके डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप एलन्स की नोट नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप डॉक्टर विलियम बोरिक की बुक नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे आप प्रैक्टिशनर अच्छे बन सकते हैं। तो शुरुआती स्टेज में तो आपको एलन, अब आपने कहा कि एलन्स का क्या रोल है सर, तो एलन्स का ये रोल है कि जैसे कहते हैं ना कि जो रोल आपकी लाइफ में आपके मदर फादर का है, वही रोल होम्योपैथी प्रैक्टिस में एलन्स का है। मैं बता दूं, वो हमारे कहते हैं ना कि मदर फादर होम्योपैथी का एलन्स की नोट है, और एलन्स की नोट तो है, और कहते, अब आप कहेंगे कि भाई आपने मदर फादर इनको बना दिया तो हेनीमैन सर क्या है, तो हेनीमैन सर तो दादाजी तो हेनीमैन सर से ही जितने भी एलन्स की नोट में जो सिम्टम्स लिए गए हैं वो सब मटेरिया मेडिका प्यूरा से लिए गए हैं। तो डेफिनेटली हेनीमैन सर ने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन उन चीजों को देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी चीज, अगर डॉक्टर रोहित गुप्ता या डॉक्टर अमित नायक अपनी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली क्लिनिकली चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं, तभी वो मास्टर कहलाएंगे। एम आई राइट और नॉट? मटेरिया मेडिका प्यूरा में सल्फर को 5000 सिम्टम्स में डॉक्टर हेनीमैन सर ने लिखा है, सैल्यूट फॉर हिज वर्क, ठीक है। लेकिन एलन्स सर ने किस प्रकार से उन सिम्टम्स को इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली कैसे अरेंज किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से डॉक्टर रोहित गुप्ता ने उन चीजों को बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया और आप लोगों के बीच में परोसा, तो ये उससे भी महत्वपूर्ण है। तो सब चीजों की अपनी अपनी यूटिलिटी है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर का रोल यही तो होता है। मैंने इसीलिए कहा कि एक अच्छा नॉलेजेबल, मैंने कई बार अपने सेशन में बोला है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत नॉलेज है तभी आप एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप में क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग है और आप एक अच्छे ऑरेटर हैं, आपके पास नॉलेज है और आप अपनी चीजों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं, तभी एक आप अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ऑथर होने के लिए जो क्वालिटी है, वो अगर चीजों को बहुत प्रैक्टिकली, बहुत अच्छी तरीके से और बहुत क्वालिटी में और बहुत क्रिएटिविटी के साथ उन चीजों को रखते हैं, और कहते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, जैसे जब आपने देखा होगा रोहित कि जब कभी भी कहते हैं ना कि कोई पेशेंट आता है ना ऑब्जर्वेशन, तो उसका बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आ जाता है कि यार ये कॉन्फिडेंट है कि नहीं। इसीलिए किताब का जो पहला पेज है ना, कहते हैं ना कि खाने में कहते हैं कि प्रेजेंटेशन अगर ना हो, अगर प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो भूख आपकी बढ़ जाती है। एम आई राइट और नॉट? तो खाने में अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं, अगर आपने वही चीज देख ली कि भाई किस प्रकार से खाना बन रहा है क्या है, तो प्रेजेंटेशन, ऐसी बुक में भी प्रेजेंटेशन होता है। मैं मतलब सैल्यूट करता हूँ ऐसे कई राइटर्स को कि जिनके पास उतना वो नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी चीजों को बहुत सिंपल वे में लिख दिया और लोग आज उनको पढ़ रहे हैं। और हम लोगों के टाइम डॉक्टर चटर्जी सर, सीसी चटर्जी सर थे, उनकी किताब हम लोग पढ़ा करते थे, बहुत अच्छे राइटर थे और आज भी उनका, लेकिन उससे अच्छा सिंपल वे में कई लोगों ने चटर्जी जी का मटेरियल उठा के उन्हीं को कई बहुत अच्छी चीजें लिखी। तो चटर्जी सर कम हो गए लेकिन वो चल गए। तो यही मैंने कहा, ऑथर की यही क्वालिटी होती है कि सारे स्टूडेंट्स के लिए, टीचर का भी यही काम होता है कि हर स्टूडेंट्स को लेके चले। इसी प्रकार से ऑथर की भी यही क्वालिटी होती है कि चाहे हम कभी भी एक टीचर होके किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कह सकते ये पुअर स्टूडेंट है। तो फिर हमारा रोल क्या है? टीचर का क्या मतलब है? टीचर केवल स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है उसी के लिए टीचर होता है क्या? तो टीचर की क्वालिटी यही होती है कि अपनी नॉलेज को हर प्रकार के वर्ग, चाहे हिंदी वाला हो, चाहे
इंग्लिश वाला हो, चाहे नॉलेज उसकी कम हो, चाहे इंटेलिजेंट हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, सबके लिए एक जैसी नॉलेज हो, और हर जो व्यक्ति है आपसे जुड़ा हुआ वो उस चीज को प्रॉपर तरीके से उस चीज को रिसीव करे। ऑथर का भी यही काम होता है कि अपनी चीजों को बड़े सिंपल वे में करे। इसीलिए मैंने कहा कि हैनीमैन सर ने तो बहुत कुछ दिया, लेकिन अगर एलन सर ने अगर सल्फर के 5000 सिम्टम्स को कंसाइज करके कितना ब्रिलियंट काम किया है, बताइए। उनको उनको उनने जो काम किया है, उनके काम को कैसे आप रिमेम्बर नहीं कर सकते कि 5000 में उनको कैसे पता था कौन सा ये सिम्टम को हमको अपनी किताब में रखना है। आप देखिए जरा कितने कम सिम्टम्स को लिया गया। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने बोला था कि मटेरिया मेडिका इज encyclopedia of the drug. No man can remain all the drug at all that time. When Dr. Hahnemann proved 30 medicine, he was forgetting his own proved medicine. That's why he was thinking about that I have to write something about repertory. फिर उन्होंने फ्रेगमेंटा डी ब्रीवस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो आप समझिए कि मटेरिया मेडिका जो डॉक्टर हैनीमैन सर जो खुद इतने बड़े प्रूवर थे, और जब 30 मेडिसिन प्रूव की थी और अपनी खुद की मेडिसिन को वो भूलने लगे थे, और सोचे थे कि जब मैं खुद अपनी प्रूव की हुई मेडिसिन को भूल रहा हूं तो एक होम्योपैथ क्या करेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि उन चीजों को रिकॉल करने के लिए, रिमेम्बर करने के लिए, उसको सिंपल वे में अगर जो चीज प्रेजेंट करता है, बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करता है, कहते हैं कि वही आगे बढ़ता है। और एलन सर ने यही किया है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से रोहित आपने प्रेजेंट किया। फर्स्ट एडिशन भी जब आपका आया था तो मैंने आपके काम को अप्रिशिएट किया था, और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं और विश्वास भी आप पे है कि आपका कुछ नए प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर रहे हैं। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जो आपका कॉन्सेप्ट रिपर्टरी का भी मैं बहुत 1-1.5 साल से वेट कर रहा था, तो अभी भी मुझे उम्मीद रहेगी कि पहली किताब मेरे पास ही आप लेके आओगे रिपर्टरी की और उसमें एलन का काफी कुछ होगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि एलन का जो है उसमें, क्योंकि अगर मटेरिया मेडिका के अकॉर्डिंगली आप रिपर्टरी को तैयार कर रहे हो तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी रिपर्टरी वही है, क्योंकि आपने मटेरिया मेडिका प्यूरा से लिया गया है। मैं कैंट सर को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन कई रूब्रिक उसमें देखिए, कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल मटेरिया मेडिका, हम लोग कभी कभी पढ़ाते हैं कंट्रोवर्शियल। अब थूजा को मटेरिया मेडिका में क्या पढ़ा है, एक सिम्टम आपको बता रहा हूँ, उसमें लिखा है कि इरप्शन होते हैं, अनकवरिंग पार्ट पे होते हैं। आपने देख कवर्ड पार्ट पे इरप्शंस होते हैं, पर्सपायरेशन अनकवर्ड पार्ट पे होता है। लेकिन जब रिपर्टरी को पढ़ोगे आप तो उसमें लिखा है कि जो इरप्शन है वो अनकवर्ड पार्ट पे होते हैं। तो जनरल होम्योपैथ तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया क्या करना है हमको रिपर्टरी की बात माननी है कि मटेरिया मेडिका की बात। तो यहाँ पे हमें क्लियर करना है कि हमें जो एलन सर का जो कॉन्सेप्ट है वो मटेरिया मेडिका प्यूरा से लिया गया, और मटेरिया मेडिका प्यूरा जो किताब थी वो प्रूविंग के ऊपर आधारित थी, कैलकुलेटेड फॉर्म में नहीं थी। इसीलिए हमें एलन की चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। एम आई राइट और नॉट, बताइए आप। यस सर। सर एक क्वेश्चन और है सर, लास्ट केस में सर आपने लाइकोपोडियम दिया था, तो उसमें पोटेंसी क्या थी और रिपीटिशन कैसे किया था आपने? हाँ, लाइकोपोडियम मैंने बताया था कि 200 पोटेंसी में मैंने इसको पेशेंट को दिया था, और जब प्रॉपर सिलेक्शन हो गया था मेडिसिन का, मैंने बताया था ऑब्जर्वेशनल सिम्टम्स मैंने बताए थे, और सिम्टम्स नरेटेड बाय पेशेंट्स के बारे में बताया था। तो जो मैंने 200 पोटेंसी में पेशेंट को दिया, और इसके बाद प्लेसिबो मैंने चला दिया था। ठीक है, प्लेसिबो चलाने के बाद जो फीडबैक आया, मुझे अच्छा फीडबैक मिला, फिर मैंने सिर्फ प्लेसिबो दिया, उसके बाद फिर प्लेसिबो दिया, क्योंकि मुझे केस को प्रेजेंट करना था। इसीलिए मैंने क्योर, ये पुराना हमारा केस है, ये पहले भी मैं प्रेजेंट किया। इसलिए मैं कहते हैं ना कि कभी भी इंसान को बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए, खासतौर पर स्किन डायबिटीज और थायराइड के केस में। अगर कभी कभी बहुत सारे डॉक्टर्स जल्दबाजी कर देते हैं, सोरियासिस को 15 दिन में क्योर कर देते हैं। तो ये 3 जब मैंने इसको दिया तो टचवुड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो फिर प्लेसिबो पे इसको रखा, केस मैंने फॉर्म किया, फिर मैंने देखा कि इसको कहते हैं ना कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, कभी कभी बहुत सारे केसेस आपने देखा होगा, ऑर्थोपेडिक केसेस होते हैं, वो दिसंबर से इलाज कराना चालू करते हैं, और जनवरी फरवरी के बाद पेशेंट को आराम लग जाता है, हम लोग खुश हो जाते हैं कि देखिए। लेकिन कभी कभी सीजन का भी इफेक्ट पड़ता है, तो आपको 12 महीने तक आपको वेट करना चाहिए। अगर उसकी नेक्स्ट विंटर सही निकल गया तो आप कह सकते हैं कि पेशेंट क्योर हो चुका है। ऐसे ही सोरियासिस में होता है, सोरियासिस में भी मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ, मैं पूरे 12 महीने का इंतजार करता हूँ। 12 महीने में अगर पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती है तब फिर जाके हम कह सकते हैं कि पेशेंट क्योर है। तो ये समझाने का तरीका था, ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत
वो है, लेकिन ये मेरा जो केस प्रेजेंटेशन था, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैंने 3 डोज दिए, ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट ठीक होते हैं, लेकिन मैंने मेरे केस का एक्सप्लेनेशन का मतलब सिर्फ ये था कि किस प्रकार से हम सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं और उनको किस प्रकार से इंप्लीमेंट करते हैं रूब्रिक में, और कौन सी चीजें हमें ऑब्जर्वेशनल लेनी चाहिए, किन चीजों को हमें रूल्ड आउट करना चाहिए, कौन से सिम्टम कॉमन होते हैं। जैसे भी मैंने एक रूब्रिक बताया, इरिटेबल क्या है, हर पेशेंट आज की डेट में इरिटेबल है, तो ये आप उसको ले लोगे, लेकिन पेशेंट इरिटेबिलिटी जब लीड कर जाती है विंडिक्टिव के, छोटी छोटी सी चीजों को पेशेंट बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, तो आप डेफिनेटली आप सोच सकते हो कि भाई हमें फिर कहीं ना कहीं इरिटेबिलिटी लीड कर गई विंडिक्टिव, तो फिर ये विंडिक्टिव जो रूब्रिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन हर इंसान आज की डेट में इरिटेबल है, अगर गुस्सा करता है, जायज बातों पे इरिटेट होता है, वो उसका कॉमन सिम्टम है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होता है, उसका गलत सिम्टम है। गलत क्या है, कह सकते हैं अनकॉमन पेक्युलर में आप ले सकते हो उसको। Okay, sir. Sir, one participant is asking about a question. A cheerful child mixes up easily but hurts only earns. What should be the rubric? फिर से पार्डन। Sir, a cheerful child mixes up easily but hurts only earns. What आप should be विवेसी, the? यस, आप विवेसियस भी ले सकते हो, जेस्टिंग भी ले सकते हो। Okay, sir. आप जेस्टिंग एक रूब्रिक होता है, इसके लिए जेस्टिंग रूब्रिक भी ले सकते हो, विवेसियस भी ले सकते हो। Sir, difference between hypochondriasis and Boster? हाइपोकॉन्ड्रियासिस और बोस्टर में बहुत अंतर होता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस तो कहते हैं कि एक एक इम्पैक्ट होता है माइंड में, और बोस्टर होता है एक एक्टिविटी होती है जो हमेशा अपने आप को डींगे हाँकने की एक्टिविटी होती है। तो दोनों में बहुत अंतर है, लॉट ऑफ डिफरेंसेस। तो ये तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस तो कहते हैं कि एक तरह से भय, वो शक हो जाता है ना पेशेंट को, हाइपोकॉन्ड्रिक तो शक हो जाता है, लेकिन बोस्टर में तो आपको Hello, sir. Hello, sir. Am I audible to you? सर की शायद स्क्रीन फ्रीज हो गई है दोबारा से। Connect हुआ सर? नहीं सर। हेलो सर, सर माइक। सर सर एक क्वेश्चन और है सर। अगर पेशेंट कहे आई एम सेंसिटिव बट आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई नाउ नो व्हाट हेल्पिंग अदर्स इज ऑफ नो यूज, उनको इसकी कीमत नहीं होगी। इसकी कीमत नहीं होगी मतलब मतलब चैट में है क्या ये क्वेश्चन? मैं थोड़ा समझ नहीं हाँ पा रहा हूँ क्या सर, पूछ चैट रहे हैं। बॉक्स में है सर, अच्छा, चैट चैट बॉक्स में है। बॉक्स में मैं देख, डॉक्टर सीमा पिल्ले। एक मिनट।
इसमें चैट में कहाँ पे है? चैट में नॉट गेटिंग प्रॉपरली। एक मिनट जरा। 9:38 PM का टाइम नहीं, पीरियड। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सर, अगर पेशेंट कहे आई एम सेंसिटिव बट आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई नो दैट हेल्पिंग अदर्स इज ऑफ नो यूज। तो इसमें तो सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म आप ले सकते हो। सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, अगर कोई कीमत नहीं समझ रहा है तो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, इसका मतलब पेशेंट तो खुद में सेंसिटिव है लेकिन दूसरे उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो सेंसिटिविटी टू कलकेरिया कार्ब इसमें आएगी मेडिसिन, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। ओके सर। और सर, व्हेन यू यूज LM potency इन स्किन डिजीज? I'm not using, I'm sorry to say, I'm not a huge fan of LM potency. So I don't want to say anything about this concern because I'm most of the time I'm prescribing because I'm using Hahnemannian method. I always prefer 30 as well as 200 बनाएं और LM potency में मैंने ज्यादा काम नहीं किया तो LM potency प्रिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन कैलकेरिया कार्ब डीप एक्टिंग मेडिसिन जो होती हैं उनमें मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ, लेकिन बहुत कम केसेस में मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो क्लिनिकली हम लोग जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो 30 में और 200 में बने में 10 में। LM में ये जो क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से कोलकाता वाले ने पूछा क्या? नो। आई वांट टू गेट द नेम ऑफ सच अ पर्सन, क्योंकि कोलकाता में LM पोटेंसी का बहुत बड़ा रोल है, यूपी में कम होता है। और आई डोंट नो इसका आंसर तो रोहित गुप्ता ज्यादा अच्छे से बता देंगे। रोहित गुप्ता ने जो है अपनी स्टडी वहाँ LM पोटेंसी पे काम तुमने किया होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ज्यादातर हम लोग 30 और 200 बने पे ही काम करते हैं। LM पोटेंसी बहुत रेयर केस में कैलकेरिया कार्ब या एक दो मेडिसिन हैं वो मैंने प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स नहीं मिले और हो सकता है कि मैंने प्रैक्टिस में अप्लाई नहीं किया, तो इस वजह से फिर मैंने ये होता है कि जिस पोटेंसी पे आपका फेथ हो जाता है और पेशेंट के अकॉर्डिंगली जिन जिन चीजों, इसीलिए क्या है ना कि सिलेक्शन ऑफ जो पोटेंसी होती है वो पेशेंट की कंडीशन और सीवियरिटी पे डिपेंड करती है कि पेशेंट किस प्रकार का है। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं तो मैं साइलिसिया की लोअर पोटेंसी यूज करता हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है कि सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी किस प्रकार से आपको यूज करना है। यस सर। सो दैट्स इट सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। once again I congratulate you and I would like to give huge thanks as you invited me as a speaker in this event, and I hope you will do something good in future ahead. So congratulations once again. Thank you. Thank you so much sir. And thank you everyone who joined us today. Let's connect tomorrow again in the last webinar at the same time 8 o'clock with a new renowned teacher and speaker, Professor Dr. Subhash Singh sir. Thank you very much.